तो हेडिंग है will the Sensex hit 1 lakh? Okay. The story. Will the Sensex hit 1 lakh? Yes. Finshots, what are you smoking? There's a war unfolding in Ukraine. Yes, we know, but here is out, folks. We only said that it will hit 1 lakh. We're not saying when it will hit that mark. As you can see, we are taking the Wall Street maxim of forecast, a number or a date, never both, very seriously. Because getting both the date and index level spot is hard, very hard. Just ask James Glassman and Kevin Hassett. They are the authors of the infamous book Do 36,000. Now you're thinking, hey, the US Dow Jones stock index breached 36,000 last month, and it sure did. But guess what? They wrote the book in 1999 and predicted that the Dow would hit 36,000 by 2004. Their prediction was off target by a cool 18 years, so it made them the butt of many jokes during that period too. And we have seen such predictions about the Sensex too, like this one from 2014. Modi effect. Sensex seen at 1 lakh by 2020. ये एक मिनट कौन सा वर्ड था? हाँ, ये डो क्या होता है? डाउ जोन्स एक वो है, इंडेक्स है। तुम लोग ने इंडेक्स अभी नहीं पढ़ा है ना? इंडेक्स स्टॉक्स क्या होते हैं? कोई भी कंट्री में, जैसे निफ्टी का नाम सुना होगा, सेंसेक्स का नाम सुना होगा इंडिया में, वैसे बाहर S&P 500 है, डाउ जोन्स है। तो ये सब इंडेक्स स्टॉक्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि वो लोग एक इकोनॉमी की बेस्ट कंपनीज को लेके कंबाइंड स्टॉक बनाते हैं, ठीक है? वो उसको ऐसे लिस्ट किया जाता है, ठीक है? तो उसमें जैसे S&P 500 में अमेरिका की टॉप 500 कंपनीज कह सकते हैं, वैसे ही निफ्टी 50 में इंडिया की सबसे अच्छी परफॉर्मिंग 50 कंपनीज, वैसे, ठीक है? तो इसमें तुम अपने पैसे डालते हो तो बेसिकली इनडायरेक्टली वो सारी कंपनीज के थोड़े थोड़े स्टॉक्स खरीद रहे हो। तो इकोनॉमी, लाइक दीज कंपनीज आर असेस्ड टू बी परफॉर्मिंग वेल, कि ये अच्छा परफॉर्म करेंगी, इसीलिए उनको उसमें डाला गया है। एंड ओवर टाइम, इवन दो मार्केट ऊपर नीचे जाता रहेगा, ओवर टाइम दे आर सीन टू बी ग्रोइंग, ऑलवेज ग्रोइंग ओवर द ईयर्स। तो S&P 500 का आई थिंक 10 टाइम्स हो गया था या कुछ ऐसा कुछ सालों में। तो बहुत, मतलब बहुत प्रॉफिट रहता है। 10 टाइम्स था, ट्वाइस था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। पर इसमें कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के इंडेक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। अपने वही स्टॉक ट्रेडिंग ऐप से ही हम डाल सकते हैं उसमें भी पैसे। तो सेंसेक्स आई थिंक 54 के आसपास अभी चल रहा था, उसके बाद ये था। अगर कोई जानता हो तो सुनील यहाँ पे है। बट एनीवेज, बेसिक आइडिया यही है कि इंडेक्स फंड्स की बात हो रही है और उन्हीं के बारे में असेस किया जा रहा है कि अभी 1 लाख हिट करेगा सेंसेक्स या नहीं। तो यही है कि इतना प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। एक टाइम और डेट बता के बोलना कि इस टाइम तक यहाँ पहुंच जाएगा, वो हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत सारी और चीजें होती है इकोनॉमी में जो मार्केट को ऊपर नीचे करती रहती है। Okay. So this is like a Sensex of America, isn't it? सेंसेक्स ऑफ अमेरिका? वो कह रहे कि डो इज सेंसेक्स I mean, ऑफ अमेरिका। तो उसी के जैसा है। अच्छा, ओके। उसी के जैसा हाँ, है ना, it लेकिन is like that इंडिया only. का इंडेक्स है वो अमेरिका का। हाँ हाँ, ठीक है। Despite knowing that our predictions can go horrendously wrong, we can't help ourselves. We still want to keep doing it. It's like we are all in a toxic relationship with predictions. And while at FinShots we are so brave with our predictions, we have others who are brave than us. Like Chris Wood of Jefferies. He says that Sensex will hit 1 lakh within 5 years. That's right, a 6-figure Sensex by 2027. It seems quite outlandish, doesn't it? But wait, what if we were to frame this prediction differently? What if we ask you, do you think the Sensex can grow by 12% every year for the next 5 years? Now you're thinking, hey, that's unreasonable. The stock markets in India have indeed grown at 12% in the long term. The economy is recovering from the effects of a pandemic, so that will speed up growth too. And at the end of the day, 12% is only slightly above what India's nominal GDP growth, total rise in economic output, including inflation, could be.
you'd expect businesses to at least keep up with that. Suddenly, the Sensex at 1 lakh seems to be a pretty easy target. You see, how we frame the prediction also matters. If Chris Wood simply said that the Sensex could deliver a yearly return of 12% over the next 5 years, we wouldn't have battled an eyelid. We would have shrugged and just got on with our lives. But because he predicted 1 lakh, we all sat up and took notice. 1 lakh is bold, 12% is boring. In reality, though, they are two sides of the same coin. However, there's still a problem with most of these predictions, and it's again to do with psychology. We told you this edition is all about psychology. So if you look closely, you will see that these predictions suffer from something called the Resney bias. It basically means that the people who dole out predictions make the mistake of expecting the market to continue its growth, good or bad behavior. If stocks are doing badly, you'll only see predictions saying how much lower the Sensex will fall. If stocks are doing well, you'll see predictions like 1 lakh for the Sensex. अभी तक कुछ बताना है क्या गर्गी? थोड़ा सा एक बार ऊपर स्क्रॉल कर, मैं देखती जाती हूँ. साइकोलॉजी वाला पॉइंट इसने बोला है कि हाँ, उसके पहले उसने ये बोला था कि हम 12% बोलते हैं जब, ऑल्दो इंडिया में ऐसा बोल रहा है कि डिलीवर किया है सेंसेक्स ने 12% का एनुअल रिटर्न. पर एक बार थोड़ा सा और ऊपर जाइए, लिखा था शायद उसमें. और एक सेकेंड. वो वाली लाइन कहाँ पे लिखी थी? ऑल्दो इंडिया में डिलीवर कर रहा है सेंसेक्स. ओ तो यही है. said that एक मिनट. अच्छा, ये रहा ऊपर वाले पैराग्राफ में था. ऊपर यहाँ से स्टार्ट है. And at the end of the day, 12% is slightly above what India's nominal GDP growth could be. You would expect businesses to at least keep up with that. Okay, अब GDP का भी concept है. Stock markets in India have indeed grown at 12% in the long term. Economy is recovering from the effects of pandemic. अच्छा, तो इन्होंने ये बोला कि जब उस बंदे ने, जो भी क्रिस नाम करके है, उसने जब बोला कि 1 लाख सेंसेक्स पहुंचेगा, उसने बोला 5 साल में सेंसेक्स 1 लाख पे पहुंचेगा. ठीक है, अब हम उसको अगर ठीक से एनालाइज करें तो बेसिकली वो यही बोल रहा है कि एनुअली 12% का रिटर्न देने वाला है सेंसेक्स. लेकिन अब इसमें ये भी बोला है कि लेकिन इस प्रेडिक्शन को भी हम सही कह सकते हैं क्या? ऑल्दो हमें इंडियन स्टॉक मार्केट्स में 12% का मिल रहा है लॉन्ग टर्म में, अगर देखा जाए तो एनुअल रिटर्न लगभग मिल रहा है अपना, और अपने जीडीपी ग्रोथ भी काफी अच्छी है इस समय पे, तो हम मान सकते हैं कि सेंसेक्स 1 लाख पहुंचेगा. मेरे को ये बता, तो इसमें सेंसेक्स जो ऐसे है दिखाया नहीं वाले पैराग्राफ, वो 12% बढ़ेगा, इसका मतलब कि हमें उतने ही रेट से प्रॉफिट भी होगा, ऐसा? वही ना. मतलब जैसे अगर अभी सेंसेक्स, वैसे तो रेट सेंसेक्स के 50,000 के ऊपर होता है, लेकिन मान ले 100 रुपए का है सेंसेक्स, और मैं बोल रही हूँ कि 12% एनुअली बढ़ेगा, तो नेक्स्ट ईयर तेरा वो स्टॉक हो जाएगा 112 का, और फिर ऐसे मतलब बढ़ता जाएगा. लेकिन बात यह है कि वो एनुअली वैसे नहीं बढ़ता है, लॉन्ग टर्म में देखा जाता है. जैसे हो सकता है 1 साल वो थोड़ा गिर जाए, पर तू अगर 20 साल का उठा के देखेगी तो ऑन एन एवरेज अगर देखे तो जो अमाउंट तुझे मिला होगा उससे अगर तू कैलकुलेट करेगी तो एनुअली 12% वैसे बोला जाता है. तो समझ रही है, कोई स्टॉक तूने खरीदा है, ठीक है, वो अगले साल तूने 100 रुपए डाले थे, हो सकता है अगले साल, हम बोल तो रहे 12% एनुअल रिटर्न लॉन्ग टर्म में देगा, लॉन्ग टर्म में मतलब कि 1 साल में ही नहीं दे देगा 12%. ठीक है, तो इस साल मान ले उसने गिरा दिए तेरे पैसे, 90 हो गए, अभी वो 100 रुपए का स्टॉक 90 का हो गया. अब नेक्स्ट ईयर हो सकता है 102 रुपए हो जाए, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर हो सकता है वापस गिर. ठीक है, बट लॉन्ग टर्म में क्योंकि मार्केट भी बढ़ता है और इकोनॉमी भी बढ़ती रहती है, जीडीपी भी ग्रोथ होती रहती है, तो लॉन्ग टर्म में सारी कंपनीज मोस्टली राइज ही करती है. और तो 2020 में थोड़ा बहुत गिरेंगी क्योंकि मार्केट में चीजें होती है, वॉर्स हो जाते हैं जैसे,
पैंडेमिक आ गया जैसे, ये सारी चीजें होती रहती है कुछ ना कुछ, तो लॉन्ग टर्म का वो मतलब हो गया। और क्या, हाँ और थोड़ा सा और नीचे जा, क्रिस वुड सिंपली सेड दैट द सेंसेक्स कुड डिलीवर अ हाँ हाँ, तो इसमें ये भी साइकोलॉजी वाला पॉइंट बोला है कि वो 1 लाख अच्छा दिख रहा है, 12% हमने इतनी बार सुन लिया कि वो बोरिंग हो गया है। अच्छा ओके। Recency bias क्या है? Basically means that people who roll out predictions make the mistake of expecting the market to continue. Okay. Recency सुनील bias आप कुछ जैसे बोल रहे थे recent क्या? जो चीज हुई ना उसके लिए bias। हाँ रीसेंसी बायस भी एक टर्म था। कहाँ पर था? नहीं, वो वही बोल रहा है ना, 12% CAGR, अच्छा ओके। 12% बोल रहे थे। हाँ, वो CAGR होता है ना, मतलब 10 साल में अगर एक 120 और 140% एक साल में 12%, उसका टोटल रिटर्न को डिवाइडेड बाय इयर्स करते हैं। रिसेंसी बायस तो वही है ना, जो स्टॉक मार्केट अभी जो बूम हो रहा है ना, क्योंकि हाँ हाँ कोविड और कोविड रिस्ट्रिक्शन हटने के बाद में, और ये बोल रहे हैं कि हम ये सोचते हैं कि मार्केट कभी भी ऊपर जाएगा, कभी गिरेगा नहीं, इसे रिसेंसी बाय कहते हैं। हाँ मतलब उसने ऐसे सोच लिया कि अभी अच्छा चल रहा है तो आगे भी अच्छा ही चलेगा। अच्छा अच्छा। हाँ 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 वो टर्म को ब्रेक करके ऐसे एक रिसेंट हो गया, जो रिसेंट चीज हुई उसके लिए बायस। ठीक है, और मुझे ये पूछना ओके था CAGR का, आप कह रहे हो सुनील कि CAGR मान लो अगर 100% दिखाया है तो उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें एनुअल रिटर्न मिलेगा। CAGR एनुअल रिटर्न है, 100% रिटर्न। अगर आपका रिटर्न 5 साल में 100% है तो आपको CAGR कभी 12 to 13 आएगा, क्योंकि वो 20 नहीं आएगा, क्योंकि वो आपका क्या बोलते हैं, रिटर्न भी तो रिटर्न कमा रहा है, आपका पैसा भी पैसा बना रहा है ना। हाँ। मतलब इस साल आपको 10% मिल गया, तो अगले साल आपका 10% और आपका कैपिटल दोनों अप्रिशिएट करेंगे ना, हाँ हाँ, इसलिए टोटल डिवाइडेड बाय उसको तो फॉर्मूला CAGR है वो पूरा जो कैलकुलेट कॉम्प्लेक्स। करके बताता है। हाँ, कैलकुलेट करके बता, टोटल ऑलमोस्ट अच्छा। वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। अगर आप 10 साल ओ 15 साल उसका फंड का परफॉर्मेंस देखते हो तो CAGR में देखते हो, मतलब वो पास्ट 20 साल में और 30 साल में कैसा परफॉर्म किया है, उसके बेसिस में हम जस्ट सोचते हैं। लेकिन वही बोलते हैं ना, पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट अश्योर फ्यूचर गारंटीज, म्यूचुअल फंड्स में बोलते हैं ना, स्पीड में वही। हाँ CAGR क्या होता है? स्टॉक का नाम है क्या? कंपाउंडेड, नहीं, कंपाउंडेड ओ रेट ऑफ एनुअल ग्रोथ, सॉरी, कंपाउंडेड रिटर्न ऑफ एनुअल रेट, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, कंपाउंडेड रेट ऑफ एनुअल रिटर्न। CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ कंपाउंडेड, रिटर्न। हाँ वही। ओ ओके, तो इसको डिवाइड बाय क्या? सॉरी मेरे को समझ नहीं आया। नहीं, अगर हमको इस साल हम 100 रुपए डाले थे और 10% रिटर्न मिल गया, तो हमारा ओ 10% CAGR। हाँ लेकिन हाँ वही हाँ हमारा दूसरा साल में 10 होके वो 110 से 120 और 122 हो गया, तो हाँ डिवाइडेड बाई 2 नहीं, वो कुछ इसलिए कोई फॉर्मूला है, क्योंकि आपका पहला का P प्लस R प्लस P इज इक्वल टू प्रिंसिपल, R इज हाँ इक्वल टू रिटर्न, वो हाँ कॉम्प्लेक्स हाँ। फॉर्मूला है, वो कैलकुलेटर मिलता है, सब लोग कैलकुलेटर में निकालते ओके 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 ठीक है ठीक है, मैं कंटिन्यू करती हूँ। टेक ग्लासमैन एंड हैज़ार्ड अगेन, when they made their prediction in 1998 आपका आवाज 1990। बहुत कट रहा है सुनील। वो हैं। कुछ बोल ही नहीं रहे अभी। अरे नहीं, सिर्फ उसी को मैं ऐसा, पहले भी नहीं सुन रही। उसका भी नेटवर्क थोड़ा सा, इसलिए उसका लग रहा है। ठीक है। And these good folks predicted that nothing would stop the bull run. So out came the prediction of 36,000 on Dow, but the stock market doesn't care for what you feel. It has a mind of its own. So instead of continuing to move up, the Dow cracked from 100,000 in 2000 to 8,000 in 2003, and the prediction flopped miserably. And Chris Wood's prediction, well, he made that when the Sensex hit 60,000, but
wait, what if 60,000 was the peak of the market? Just like 11,000 was the peak for the Dow back in 2000. What if the war in Ukraine intensifies? And maybe unlike other geopolitical events in the past, this war triggers investors. The Sensex crashes by another 10% and falls to 50,000. Seems plausible, right? Suddenly, you need the stock market to rise 15% every year if you want to hit the 1 lakh target by 2027. What if it falls further to 45,000? Well, then it would have to rise 18% every year for the prediction to come true. Okay, and what if there is another pandemic, another war, another tech blowout, something else that we haven't foreseen within the next few years? The market could face another steep decline then. There are so many ifs and buts. Let us leave you here with one more thought on framing. In 2008, the Sensex hit 21,000. In 2022, it hit 60,000. इस साल की बात हो रही है. On the face of it, it's quite a jump. You'd be crushing yourself if you missed investing. But what if we tell you that in percentage terms, the annual returns was a measly 7.7%. Quite shocking, isn't it? So there you have it. All we want to tell you is that not to fall prey to all these fancy predictions. The Sensex will hit 1 lakh. We just don't know when. बात तो है. मतलब कि अभी 60,000 है, ऐसा है ना सेंसेक्स. तो मतलब सेंसेक्स की बात ऐसी ही होती है कि अभी 60,000 है, 50,000 है, ऐसे ही करते हैं बात. हाँ, मतलब इसका ये मतलब है कि जो सेंसेक्स इंडेक्स है पूरा, उसकी अभी वैल्यू एक स्टॉक की 60,000 है. जैसे बोलते हैं सेंसेक्स 60 पे है, 60,000 पे है, 60 पे है. सेंसेक्स स्टॉक नहीं, वो पूल ऑफ स्टॉक्स है. मतलब उसको पॉइंट्स भी बोलते हैं. मतलब हाँ हाँ. ओके, मतलब कि सेंसेक्स में बहुत सारे स्टॉक्स हैं. हाँ बोलो बोलो बोलो. हाँ, मैं यही बोल रही थी कि उसके लिए ऐसे भी न्यूज पे अगर तू देखेगी तो ऐसे बोला जाता है कि सेंसेक्स इतने पॉइंट्स गिर गया. पॉइंट्स मतलब वही है, रुपीज ही मान ले. मान ले वो बोले कि 50,000 पे आ गया तो सेंसेक्स 10,000 पॉइंट्स गिर गया, ऐसे बोलेंगे. हाँ, पॉइंट्स बोलते हो कभी कभी. तो उसको परसेंटेज के टर्म्स में भी कहते हैं ना, जैसा अभी इसमें कहा था कि बहुत सारे परसेंटेज है ना, 7.7 या 12 जो भी उस रेट से बढ़ता भी है, मतलब उसी टर्म्स में कहते हैं, है ना. हाँ देख, इंडेक्स फंड्स का नाम बहुत है कि ये अच्छा इन्वेस्टमेंट है क्योंकि इसमें बेस्ट कंपनीज है इंडिया की और सेफ है एक तरह से थोड़ा, क्योंकि कुछ तो रिटर्न आएगा ही. लेकिन इसमें यही बताया कि फिर भी अगर देखा जाए तो लगभग 7.5 का ही रिटर्न दिया है सेंसेक्स ने अभी तक कि ऑल्दो वो 21,000 से लेके 60,000 का जंप बहुत बड़ा लग रहा है ना. उसमें कुछ लिखा है ना इस साल? नहीं, उसने क्या बोला कब 21,000 कब था, कौन सी ईयर में था? 21,000 2008 में था और अभी 60,000 है. 2018 में था तो ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया इतने टाइम में. अच्छा 8 में था. हाँ, तो इतने टाइम में ट्रिपल हो गया ऑलमोस्ट. तो ऐसे देख के तो लग रहा है ना कि यार कितना सही है. मैंने उस समय अगर 20,000 डाल दिए होते तो अभी मेरे पास 60,000 होते. लेकिन अगर तुम देखो तो तुम्हें 7.5% का ही इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उससे. यानी कि अगर तुम कोई भी ऐसी और चीज में डालते हो जिसमें तुम्हें 7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो भी तुम्हारे पैसे उतने ही बढ़ते हैं. जैसे पीएफ में डाल देते तो वो तो हर साल मिलता रहता है. हाँ, वो भी कर सकते हो. पीएफ लेकिन फिक्स्ड इनकम है ना, मतलब उसका इंटरेस्ट 3 मंथ के लिए फिक्स होता है. लेकिन इंडेक्स का और स्टॉक मार्केट का कुछ पता नहीं उसका क्या, जैसा ग्रोथ होता है वैसा अक्सर पे. तो ऐसा कहना सेफ है ना कि पीएफ हाँ. फिर मतलब ज्यादा सिक्योर है. पीएफ मतलब सेफर ऑप्शन है. हाँ हाँ सेफर है, लेकिन उसमें रिटर्न भी वो लो होते हैं 7-8. अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में पता है तो एवरेज 12 to 15 आप कमा सकते हो, ऐसा एक्सपर्ट बोलते हैं. अगर आपको अच्छा म्यूचुअल फंड पता हो. अच्छा, म्यूचुअल फंड. ओके, या म्यूचुअल फंड्स भी वही है. म्यूचुअल फंड्स मतलब सेंसेक्स मतलब इंडिया का टॉप 30 कंपनी, उसका वो अपना क्या बोलते हैं वेटेज लगता है. आई मीन
रिलायंस का 10% वेटेज वैसा वेटेज रखते हैं। म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर अपना पसंद का म्यूचुअल फंड किसी बेसिस पे उठाता है कि अगर इंडिया ग्रोथ करेगा तो ये म्यूचुअल फंड भी बढ़ेगा, उसी के ओके ओके। ये वर्क्स लाइक सेम। गॉट इट। ठीक है, ये तो पिन शॉट्स थे। 5 मिनट में खत्म भी हो जाएगी मीटिंग। तो अपने ने वैसे कोई टॉपिक तो नहीं लिया था, लेकिन पीएफ पढ़ा था, तो आज एसआईपी पढ़ ले। ठीक है, एसआईपी भी पढ़ सकते हैं। प्लीज मेरे को और वर्मा को थोड़ा पीपीएफ वगैरह के बारे में थोड़ा बता दियो ना एक बार ब्रीफ में। ठीक और है। कौन सी लिंक से पढ़ा था तुम लोग ने वो भी शेयर कर देना। हमने उनका वीडियो देखा था, सुनील क्या नाम है उनका, मैं भूल गई मेरे को। खान सर हाँ खान सर का देखा था। मुझे लगता है इजीली मिल जाएगा, पर मैं लिंक दे देती हूँ। देख पीपीएफ में ना 2 चीजें हैं। पहले तो पीएफ ही होता है, बेसिक प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, और उसमें 2 चीजें हैं कि एक होती है एम्प्लॉयज के लिए और एक होती है पब्लिक के लिए। मतलब वो आप इंडिविजुअल लेवल पे ले सकते हो, आप एम्प्लॉय हो नहीं हो आप वो ले सकते हो, ठीक है। और फायदे मतलब दोनों फायदे देखे जाए तो एम्प्लॉयज में ना थोड़ा रेट ज्यादा है, 8-9% है, और पब्लिक वाले में 7-8% है। बाकी और सब सेम ही है। एक बस वही है कि आपको कंपनी आपका खुद से सैलरी काट के कर देती है, या इंडिविजुअल में खुद से करना होता है। फिर उसमें फिगर्स भी थे कि आप 500 से 1.5 lakhs, सुनील 1.5 lakhs था ना, मेरे को मैं श्योर नहीं। 1.5 lakhs per year। हाँ इतना आप 1.5 इन्वेस्ट lakhs per financial year। पर फाइनेंशियल ईयर, हाँ इतना आप डाल सकते हो। और हाँ, और एम्प्लॉय वाले में तो 12% आपके सैलरी से पर मंथ कटता जाता है। आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, अगर आपको ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है तो आप उसको बढ़ा के मतलब स्टार्टिंग में अपने सैलरी डिस्कशन के समय बता दो कि आपको ज्यादा कटवाना है या फिर कम कटवाना है। नहीं कम तो नहीं हो सकता शायद, 12 से ज्यादा ही अगर वो करना है तो पॉसिबल है। फिर एक एनपीएस करके भी एक टर्म था जो मेरे को इतने अच्छे से याद नहीं है। सुनिए एनपीएस वाला क्या था, कुछ स्कीम था। एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन स्कीम। वो हमको 60 साल के ऊपर हमें अगर पैसा चाहिए तो हम अभी से स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टिंग, लेकिन उसका लॉक इन पीरियड अप टू 60 ईयर। अगर आपका 60 हो गया तो भी आप निकाल सकते हैं, जबकि पीएफ में 15 साल में हम निकाल सकते हैं। उसमें 60 साल तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि हम 60 साल रुकते हैं उसका रिटर्न भी ज्यादा होता है। 60 इयर्स तक? हाँ मतलब वो पेंशन है ना, पेंशन आपको रिटायर होने के बाद मिलता है। मतलब 8 साल के बच्चे का हम करवा सकते हैं पेंशन का? 8 साल हाँ नहीं कर होगा सकते हैं, कोई। लेकिन 8 साल का करेगा तो हम हाँ नहीं, उसको मिनिमम 18 तो होना चाहिए ना। अच्छा 18। पेंशन उसी को मिलता है जो काम करते हैं, आई गेस। मेरे को क्राइटेरिया याद नहीं है, लेकिन नहीं इतने छोटे से तो नहीं कर सकते हैं। और दूसरा एक और था कि इसमें रिटर्न्स शायद 10 तक जाते हैं, ऐसा था ना, कुछ हायर ही था, 9-10 था शायद किसमें? एनपीएस में। एनपीएस, हाँ हाँ भाई, वो 10 से 12 के बारे में बोल रहे थे ना। हाँ हाँ ज्यादा रिटर्न्स थे। और हाँ आई थिंक और तो कुछ भी नहीं था। हाँ इतना ही था, ब्रीफली इतना ही था। और ये तो बात है मतलब कि अगर मैं पीएफ अपना का अगर हम हाँ बोलो बोलो। नहीं आप पीएफ में पहले अगर बोलो हम फिर मैं एक पूछती हूँ। और हाँ, पीएफ में हम अगर एक फाइनेंशियल ईयर में अप टू 1.5 लाख हम जमा करते हैं, आफ्टर 15 ईयर्स जो हमें रिटर्न मिलता है ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, उसका कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। वो कम्प्लीटली टैक्स फ्री है। अरे तो इसलिए भी जो हाँ भी काम करते हैं ना वो यूज करते हैं पीएफ को। सब लोग बोलते हैं अगर हम काम करते हैं तो ईपीएफ में डालो, अगर काम नहीं करते तो भी एक पीएफ का अकाउंट खुलवाओ। और हाँ लोग हाँ ये बोलते हैं कि हमारा पीएफ ईपीएफ अकाउंट, सॉरी पीपीएफ अकाउंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो कोई भी खोल सकता है, वो एज सुन एज हम जॉब मिलते हैं या अर्ली स्टेज में खुलवाओ, ताकि अगर आफ्टर 15 ईयर्स हमका जो क्या बोलते हैं, आफ्टर 15 ईयर्स जब हमें मनी मिलता है ना तो आपका
उसका यूज हो। अगर हम 20 के ईयर में स्टार्ट करें तो 35 ईयर में वो एंड होगा ना, तो हम 35 ईयर्स में कुछ कर सकते हैं, उसका बच्चे का स्कूल और समथिंग और कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए बोलते हैं कि पीपीएफ को तुरंत शुरू करो। पीपीएफ तो आपका होगा ना, अगर आप सैलरी पर्सन हो तो कंप्लीटली होगा। अगर आपका कंपनी कोई भी कंपनी 50 एम्प्लॉय से ज्यादा एम्प्लॉय है तो उसमें ईपीएफ कंपलसरी। हाँ, टैक्स नहीं है, ये तो अगर बहुत ही हमारी बड़ा पॉइंट कंपनी है, हमारा इसमें सब ईपीएफ प्रेफर करवाती नहीं है, करते। हाँ, हाँ, अगर आपका कंपनी बड़ा है, मोर देन 50 एम्प्लॉय है तो मैंडेटरी है, गवर्नमेंट ने क्या बोलते हैं तो कायम करा है। कुछ परसेंटेज वो बोलते होंगे कि इतना डालना है, बट हम उसको बढ़वा सकते हैं। हाँ, 12% तो परसेंटेज नहीं। कटवाना ही है। 12% ऑफ और बेसिक अच्छा हाँ, सैलरी। परसेंट, हाँ सॉरी, मेरे को लगा तेरे को रेट लगा। 12% रेट ऑफ और हाँ, नहीं। नहीं नहीं, 1.5 लाख तक हम जा सकते हैं। 12% इज द मिनिमम। अगर हम ईपीएफ में बस एक ही चॉइस है, हम जब ज्वाइन करते हैं ना तब हम सोच सकते हैं कि हमें ईपीएफ नहीं कराना, लेकिन वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि 8% तो वो थैंक यू। हाँ, तो मैं कह रही थी कि 10 से ज्यादा साल काम किया है किसी एम्प्लॉय ने, तो कंपनी को मतलब बॉस अपने उस एम्प्लॉय का ईयर एंड में सैलरी का 15% बोनस देना पड़ता है। तो मतलब टू शो कि आप बहुत लॉयल हो, ये सब। दिस इज ऑल्सो अ रूल, और गवर्नमेंट अभी इसको 5 साल करने वाली है, ऐसा। हाँ, आई थिंक इतना ही था उस वीडियो में। यार कोई ऐसी चीज भी होती है जिसमें और कंपनी उतना ही पैसा अपनी तरफ से डालेगी, क्या होता है वो चीज? तेरी आवाज बहुत कट रही थी, वापस बोल एक बार। जैसे मान लो मैं 2000 डाल रही हूँ तो कंपनी भी 2000 डालेगी। कहाँ डाल रही है 2000? हाँ, मैंने भी वही सुना था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये ईपीएफ में ही होता है। मुझे श्योर नहीं है। मैंने भी सुना था हम कितना अमाउंट डालते हैं, हमारा कंपनी भी उतना ही डालता है, लेकिन कंपनी के लिए एक लिमिट होता है, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। लेकिन या आई आल्सो, लेकिन ऐसा भी ना कि ईपीएफ में तो हमारा पैसा ही तो एम्प्लॉयर वही डाल रहा है ना, हमारा जो बेसिक पैसे कट रहा है वही तो पैसा हमारे फंड में डाल रहा है, तो उसका भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है। हम हमारा पैसा कंपनी लेती है, उसको डायरेक्टली वो क्या बोलते हैं, उसका फंड का कुछ नाम था ना, उसमें जमा कर देती है। मतलब ईपीएफ की बात चल रही है ना, कि कोई और चीज है ये? नहीं नहीं, जैसा मुझे लगता है एपीएफ ही है, लेकिन पता नहीं, अगर मिल जाए तो मुझे ओ, ओके ओके ओके, ठीक है। गार्गी, एसआईपी शुरू करें? हाय रौनक भैया, हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो सिक्योर एंड। हेलो। आज हेलो। सौम्या नहीं आया? हाँ, वो आ रहा है, वो कुछ तो अपना काम कर रहा है। चलो सही है, लेट्स स्टार्ट। हमने एक फिनशॉट पढ़ा कि बिल सेंसेक्स हिट 1 लाख, ये खत्म किया अभी। फिर पिछले मीट में हम लोग ने पीएफ पढ़ा था, तो गार्गी को थोड़ा समरी दे रहे थे। आज एसआईपी पढ़ने वाले हैं, मतलब हमारा ये वो सीरीज है जहाँ पर हम लोग सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स देख रहे हैं, जो करने ही चाहिए सबको। तो आज ठीक है, सेकंड डे है। सही है। सो इन केस कोई डाउट्स तो आपको, तो आप फील फ्री टू कांटेक्ट मी या फिर कॉल अब भी पूछ सकते अभी तक तो पीएफ तो क्लियर है, मतलब हाँ, वो क्लियर है। पिछले बार हम लोग ने डिस्कस कर लिया था अच्छे से। आज एसआईपी देखने वाले हैं। आपको एसआईपी पे कोई अच्छा वीडियो पता है क्या? क्योंकि मैंने अब तक ढूंढा नहीं। हो। एसआईपी पे वीडियो मतलब एसआईपी एक्चुअली में है क्या, या फिर कोई अच्छा म्यूचुअल फंड प्लान? एसआईपी भी एक इन्वेस्टमेंट कुछ तो है, मेरे को भी नहीं पता है। दोनों एसआईपी में से सिर्फ एक एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट सिस्टमैटिक टाइप है, इन्वेस्टमेंट। जिससे बेसिकली दो होता है, इक्विटी एंड डेट। सो एसआईपी इज अ फॉर्मेट ऑफ इन्वेस्टिंग जहाँ पे आप अपना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका जो टाइम वैल्यू रिस्क है ना वो आप निकाल दोगे। जैसे इनकेस अगर आपने आज इन्वेस्ट किया, आज सेंसेक्स ऑल टाइम हाई पर, सो नेक्स्ट नेक्स्ट वीक लेट्स से कि वो ऑल टाइम हाई से 10% गिर जाए, 5% गिर जाए,
बट इन केस आपने सारा पैसा आज ही इस वीक में डाल दिया है तो आप नेक्स्ट वीक को तो आपको लॉस हो जाएगा। सो इसलिए हाँ एसआईपी एक फॉर्मेट है जिसमें आप हर वीक में थोड़ा डालते रहोगे तो उससे आपका जो टाइम रिस्क है ना वो हट जाएगा, कि जैसे मार्केट आज टॉप पर है कल नहीं है, या फिर आज बॉटम पे फिर ग्रो हो रहा है, सो वो टाइम रिस्क निकल ओके। जाता है। सिर्फ फॉर्मेट है वो। ठीक है, तो एक वीडियो मेरे को मिला था अंकुर वारिगो का 18 मिनट्स। सिमरन सुनना, आई थिंक उससे बेटर होगा अपने हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आज रौनक क्वेश्चंस अपने सब पूछ सकते हैं, और सौम्य को भी एक बार इन्फॉर्म कर देते हैं कि आज भैया आए तो उसको भी कुछ कुछ हाँ क्वेश्चन मैं होंगे। टेक्स्ट कर देती हूँ जब। हम्म, ठीक है ठीक है, अ, नहीं worry। ओके, मैं क्या पूछने वाली थी, हाँ, तो सौम्य का बहुत ज्यादा ये कंसर्न था कि हम लोग सिक्योर जगहों पे कैसे डाले पैसे, राइट। तो फिर अपने पास एक एसआईपी का ऑप्शन है जो हमें ऑन एन एवरेज 12% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है, प्लस हमारे पास पीपीएफ का ऑप्शन है जो ओवर 15 ईयर्स हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है सिमरन? बाकी सिर्फ वन 8-9%। एसआईपी सिर्फ फॉर्मेट ऑफ इन्वेस्टिंग, एसआईपी आपको 12% रिटर्न नहीं देगा, रिटर्न आपको फंड देगा। तो अगर आप एसआईपी कर रहे हो, एसआईपी अगर आप कर रहे हो, एफडी में एसआईपी होता है, एफडी में भी, जिसको रिकरेंट वो डिपॉजिट बोलते हैं। पीएफ की बात कर रहे हैं ना तो घर की? नहीं, एसआईपी नहीं होता पीएफ। नहीं मैं पीएफ की बात हम एसआईपी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, पीएफ के बारे में, एसआईपी के बारे में अगल हम बात नहीं अभी तक नहीं कर सकते। आई थिंक मेरी आवाज इतनी लेट जा रही है, कुछ लोगों की कंफ्यूजन हो जा रहा है। नहीं, मुझे अरे परफेक्टली आ रही है, अभी आपने बोला ना। अरे हाँ नहीं, आपको आ आज रही है, हमारा सिमरन को शायद। एसआईपी पे अभी तक बात नहीं हुआ है, वो पीएफ का ही कह रही है अभी, है ना घर की? मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ बस, कि ओ अच्छा, जैसे एसआईपी ठीक है, की जनरल। बहुत ज्यादा ऐसे तारीफ है कि एसआईपी, लाइक इफ यू लुक फॉर अ गुड एसआईपी तुम्हें 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट यू कैन एक्सपेक्ट आउट ऑफ इट। आप क्या नहीं, बोल यहाँ रहे पे थे फिर कि से मतलब फंड? स्टेटमेंट में मिस्टेक है, स्टेटमेंट में मिस्टेक है। एसआईपी इज अ फॉर्मेट ऑफ इन्वेस्टिंग। SIP can be done into anything, done into crypto, done into mutual funds, done into FDs, done into gold. अच्छा, मैं SIP म्यूचुअल is a फंड format एसआईपी of की बात कर investing. रही हूँ। ओके ओके, आई हाँ, तो गॉट फिर दैट। डिपेंड हाँ करता है म्यूचुअल फंड कौन सा है, तो रिटर्न उस पर बेस्ड होगा ना। अगर मैं SIP कर रहा हूँ डेट फंड में, सो 12% तो मुश्किल है मिलना उसमें। मतलब वो ऑन एन एवरेज हाँ हाँ इंडेक्स फंड के बेसिस में, मतलब पिछले 20 साल के बेसिस बोलते हैं ना, पिछले 20 साल 12 Considering परसेंट past दे returns, चुके हैं। index fund have given 15% in India. हाँ But since we're talking about SIP, so SIP is not an investment type, it is an investment format. बस वो clear कर रहा था मैं आपको। हाँ हाँ, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, राइट। हाँ तो एक फॉर्मेट ही हो गया तो। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, कहीं हाँ भी तेरा डाउट पूछ लो क्वेश्चन क्या आपको था? जो भी। हाँ मेरा नहीं वो क्वेश्चन ये था जब, कि हाँ बोलो बोलो, वही वही। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे सिक्योर तो इन दोनों ऑप्शंस में से पीपीएफ है, राइट। मतलब अगर अभी हम लोग अभी के हिसाब से सोचे, मैं अभी 19 ईयर्स की हूँ, तो अभी मैं मेरे पास दो ऑप्शंस है, या तो मैं एक एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में स्टार्ट करूँ, और या फिर मैं एक पीपीएफ ले लूँ। तो व्हाट इज मोर लाइक अभी के लिए? रिस्क एपेटाइट भी मैटर करती है, बट आई थिंक अभी के लिए एसआईपी म्यूचुअल फंड्स इज स्टिल बेटर, राइट? It again depends on personal preference. Personally, मुझे तो बिल्कुल PPF पसंद नहीं है। PPF, if you're considering for tax planning, then it's good. It saves you a lot of tax. But if you want to maximize your returns, always mutual funds will be a better investment than PPF. PPF mostly people use to save taxes. हाँ सर आई हैव Or if डाउट, you're thinking हम for ईपीएफ और पी, हेलो hello, हाँ हाँ क्या हम आवाज आ रही ईपीएफ है? और पीपीएफ आवाज आ रही है? बोथ ले सकते हैं क्या? आवाज आ रही है मेरी? आई थिंक और कट ऑफ हाँ कॉल हाँ आया था बीच में। अब आ रही है, आ रही है। हाँ हाँ, हाँ, मेरा क्वेश्चन तो ये था आपने कि कहा था हम सुन। ईपीएफ और पीपीएफ,
हेलो, हेलो आवाज आ गार्गी, रही आई है? there? हाँ हाँ, आप दोनों की आवाज आ रही है। सुनील आज हाँ, हम ईपीएफ और पीपीएफ मुझे बोथ एक मिनट रुक ले जाओ, सकते हैं क्या? लास्ट क्वेश्चन सर आंसर आंसर हाँ, नहीं ओके किया ओके। मैंने गार्गी का। गार्गी आपने कहाँ तक सुना? पता नहीं बीच में कहाँ कट ऑफ हो गया कॉल। आपने बोला कि वो टैक्स बेनिफिट्स के हिसाब से लोग लेते हैं, हाँ टैक्स करेक्ट। बचाने के लिए। तो हाँ, क्वेश्चन था आपका कि इस रेंज में आपके लिए रिस्क फ्री ऑप्शन कौन सा है, मतलब लेस रिस्क फ्री कुछ भी नहीं है। सो लेस रिस्क वुड बी बॉन्ड्स, वो फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। और इवन तो अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का, विंड 12, बट इसमें भी शायद अभी काफी कम बॉन्ड्स आ रहे हैं। सो यू कैन गो फॉर डेट म्यूचुअल फंड्स, वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट। अब म्यूट हो गए। हेलो, या फिर से कट ऑफ हो गया, कॉल आ रहा है। कोई नहीं, आप वो कोई नहीं, कॉल आप एक रिसीव बार कर लो, हम अटेंड थोड़ी कर देर लो। बाद पूछ लेंगे। हाँ, तब तक हम डिस्कस कर लेंगे। हाँ बस 2 मिनट रुकना। कोई नहीं, कोई हाँ नहीं। हाँ, आराम से। सुनील, आपका क्या वैसे छोड़ो, हम लोग क्या ही जान रहे हैं। अच्छा सुन, सौम्य को बताई मैं मैंने तो टेक्स्ट कर दिया है, कॉल कर दूं क्या? कर दे अगर फोन हाथ में तो। हाँ, बात तो मैं रिकॉर्डिंग पे पॉज कर देती हूँ। एक मिनट। हाँ, कंटिन्यू। तो गार्गी, डिड यू गेट योर आंसर? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आपने बोला, आपने कोई किसका ऐप का नाम लिया था? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उसका विन ऐप 12। नहीं है, वेबसाइट है फिलहाल। विंड 12, WINT WELTH। मैं चैट में डाल देता हूँ। ओके, थैंक यू। ठीक है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ओके सुनील, यू हैड सम क्वेश्चंस। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि हम ईपीएफ और पीपीएफ दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? EPF और PPF हाँ, नहीं। सो EPF वो तो कौन हम सा है, इफ यू आर एम्प्लॉयड, इफ यू आर सैलरीड एम्प्लॉय। PPF अलाउड सबके लिए, बट बेसिकली इट वाज क्रिएटेड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स, लेट्स से अ सीए हु इज प्रैक्टिसिंग। उसकी कोई सैलरी हाँ, तो नहीं आ रही, बट उसको फिर भी टैक्स बेनिफिट चाहिए, सो ही कैन इन्वेस्ट इन PPF। PPF is for salaried employees. PPF is for anyone who wants to enroll. ओके ओके। तो अगर हम अभी अभी कुछ काम नहीं कर रहे हैं, मतलब हमारा कुछ बिजनेस चल रहा है और आगे हम जाके किसी कंपनी के लिए वर्क करते हैं, तो तो अभी आप PPF में एनरोल कर लो, PPF इज फॉर एवरीवन। अगर आप कंपनी में जॉब भी कर रहे हो ना, हाँ EPF में रेस्ट्रिक्शन है, इट इज ओनली अलाउड फॉर एम्प्लॉयड सैलरीड इंडिविजुअल्स। हाँ। ठीक है, अगर मैं PPF एनरोल एक कर लो, एम्प्लॉय हूँ, जिससे आप सॉरी, PPF ओपन कर सकते हो। ओके ओके, अगर मैं एम्प्लॉय तो ईपीएफ और पीपीएफ बोथ में इन्वेस्ट कर सकता सॉरी, फिर से बोला। हूँ। अगर मैं एक एम्प्लॉय हूँ तो मैं ईपीएफ और पीपीएफ दोनों में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। हाँ कर सकते हो, बट दोनों एक ही है तो कोई सेंस नहीं बनता। नहीं नहीं, सेंस नहीं बनता। मैं इसलिए बोल रहा था कि अगर हाँ हम अभी अलाउड है, अलाउड। स्टार्ट करते हैं तो जब हमको जॉब मिल जाएगा तो इसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसलिए पूछो। नहीं, कोई इशू नहीं। सुनील, अगर आप चेक करोगे ना तो उनका दोनों फुल फॉर्म में आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा। EPF इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, PPF इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड। सो पब्लिक इंक्लूड्स एवरीवन, बट एम्प्लॉय इंक्लूड्स ओनली सैलरीड इंडिविजुअल। समझ रहे हो? हाँ हाँ हाँ, हाँ, बस नेम में मीनिंग है, बस थोड़ा ध्यान दो। ओके ओके। और मुझे ये पूछना था, हम लोग को मैं और सुनील कंफ्यूज है। हम लोग ने कहीं पे ऐसा सुना है कि कोई तो ऐसी चीज होती है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसमें एम्प्लॉयज जितना पैसा डालते हैं, कंपनीज भी अपनी तरफ से उतना पैसा डालती है। EPF तो है, वो क्या होता है? ईपीएफ दैट में इज यही होता है EPF। क्या? हाँ, ओ, तो 12% कह रहे थे ये लोग कि डालना ही होता है, उससे आप बढ़वा सकते हो 12%। फिर। और नहीं, मतलब बेसिकली कैसा है ना कि 12% इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। अच्छा,
और इफ कंपनी वांट्स उसको ज्यादा देना वो दे सकती है, बट उसमें टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा कंपनी अगर ज्यादा देगी तो? मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इन केस लेट्स से कि आपका आप कंपनी आपको आपकी तरफ से इन्वेस्ट कर रही है, मतलब ईपीएफ में ऐसा क्राइटेरिया होता है जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो उतना सिमिलर कंपनी को मैच करना होता है, ठीक है। अच्छा। सो ईपीएफ इज टैक्स फ्री, इसलिए वो लोग टैक्स प्लानिंग में यूज करते हैं। तो जितना आपने इनकम ईपीएफ में इन्वेस्ट किया वो आपकी टोटल इनकम में से डिडक्ट हो जाएगा, मतलब उतना आपका ईयरली इनकम कम हो जाएगा। सो आपका जो स्लैब है इनके साथ 10 लाख के ऊपर फॉल कर रहे हो, लेट्स से यू अर्निंग 12 lakhs पर ईयर, बट आपने लेकिन एग्जाम्पल चेंज करता हूँ, अगर आप अर्न कर रहे हो 11.5 lakhs पर ईयर और आपने 1.5 लाख इन्वेस्ट कर दिया पीपीएफ में, ईपीएफ में, सो आपका इनकम हो गया 10 lakhs। सो आप 30% स्लैब से नीचे होके 20% स्लैब में आ गए। आपको स्लैब पता है ना, स्लैब रेट्स? हाँ हाँ, टैक्स लैब्स ना। हाँ, सो आपका स्लैब रेट, हाँ टैक्स पे आपका फिर से चेंज हो गया, 30% से आप 20% पे आ गए। तो आपने जो आपका इनकम है ईयरली वो एक्चुअल में 11.5 lakhs है, बट क्योंकि आपने 1.5 लाख इन्वेस्ट किया ईपीएफ में जो टैक्स फ्री है, सो आपका इनकम 10 lakhs हो गया फॉर टैक्स कैलकुलेशन। सो ये टैक्स बेनिफिट है ईपीएफ का। ये क्लियर हुआ? हाँ हाँ, ये समझ आ गया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं उससे ज्यादा करना चाहूँ, लाइक मान लो मेरा 11 lakhs है एनुअल सैलरी, मैंने उसका 1 लाख का तो ईपीएफ में डाल दिया, बट मैं अभी और 50,000 डालूं तो वो 9.5 हो जाएगा मेरा एनुअल वैसे इनकम जो ईपीएफ में नहीं किया। ठीक है, तो उस पे आप बोल रहे हो कि टैक्स लगेगा नहीं लगेगा? टैक्स में कुछ लिमिट सेट होते हैं, वो लिमिट्स चेंज होते रहते हैं, बट जो करंट लिमिट है वो है 1.5 lakhs। सो आपको इन्वेस्ट करना है, आप ईपीएफ में 1 करोड़ डाल दो, 10 करोड़ डाल दो, गवर्नमेंट इज नो इश्यू, बट आपको टैक्स सेविंग मिलेगा सिर्फ 1.5 लाख का, बाकी इनकम ओ टैक्सेबल है। अच्छा अच्छा। ओ ठीक है, समझ गई। ओके। और जो वो ईपीएफ में जो एम्प्लॉय एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैच होता है, सो आप जितना ईपीएफ में पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हो उतना ही एम्प्लॉयर को मैच करना होता है। और उसमें भी एम्प्लॉयर को बेनिफिट दिया हुआ है कि उसको सिर्फ मैच करना है अप टिल 12% ऑफ योर बेसिक सैलरी। अगर लेट्स से आपको अच्छा। सैलरी मिल रही है पर मंथ 1 लाख और आप पूरा ही डाल रहे हो 1 लाख ईपीएफ में, तो एम्प्लॉयर वो मैच नहीं करेगा हम्म। कि पूरा मैं डाल दूं 1 लाख प्लस आपको 1 लाख किस से आएगा। तो वो मैच नहीं करेगा, वो 12% ऑफ योर बेसिक सैलरी अब तो उसको, मतलब गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया है कि इतना तो आपको मैच करना चाहिए, उसके बाद आपकी मर्जी एम्प्लॉयर। सो 12% तो वो मैच करेगा करेगा, बट उसके आगे उसको कोई मैंडेशन नहीं है, बट वो चाहे तो कर सकता है। ओ ठीक है, मतलब वो 12% मेरी सैलरी का मैक्सिमम एक तरह से मान लेते, क्योंकि कंपनी क्यों ही देगी उससे ज्यादा। हाँ करेक्ट है। हाँ। लेकिन उससे कम दे सकती है क्या? 12% से कम कंपनी दे नहीं सकती नहीं है? नहीं, नहीं। अलाउड नहीं है बाय लॉ। ओके। बट कंपनी उसमें भी आपके साथ में गेम खेल जाती है, आपका बेसिक सैलरी वो कम कर देगी क्योंकि लॉ में मेंशन्ड है 12% ऑफ ओ बेसिक सैलरी प्लस। हाँ। हाँ सो इफ यू रेड सैलरी स्लिप, अभी आपने तो सैलरी अब स्लिप देखा है किसी का तो आपको उसमें दिखेगा बहुत सारे होते हैं कंपोनेंट्स, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंसेस, परक्विजिट्स। तब तो मुझे ये ईपीएफ सब ज्यादा चीजें वो ही हो नहीं गया। लग रहा है। हेलो, हेलो। आवाज आ रही है? हाँ मुझे आ रही है, बोलो। हाँ, मैं बोल रही थी मुझे ईपीएफ तो बिल्कुल फिर कोई बेनिफिशियल नहीं लग रहा है ज्यादा। ईपीएफ बेनिफिशियल है, टैक्स प्लानिंग के लिए बेनिफिशियल है। 1.5 lakhs पर ईयर नॉट अ स्मॉल अमाउंट, एक्चुअली इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं है। सो उतना इन्वेस्ट करना और ऊपर से एम्प्लॉयर मैच करता है, और उसमें इंटरेस्ट रेट भी काफी ठीक ही है, मतलब 1% है शायद करेंटली। अच्छा। तो ईपीएफ इज ओके, नॉट और अ किसी को कोई इन्वेस्टमेंट, क्वेश्चन है? व्यू कर रहे हो ना, सी इट एज अ रिटायरमेंट प्लान लाइक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज गेट पेंशन। और एनी राइट, विच वेज तो मिल रहा है ऑप्शन, ईपीएफ कंपनी कर रही है ईपीएफ तो। में तो आपके पास बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं विड्रॉवल के लिए भी।
आप कभी भी विड्रॉ नहीं कर सकते हो ईपीएफ से, कुछ कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। हाँ ये दोनों में ही होता है, पीपीएफ और ईपीएफ दोनों में होता है। दोनों में, दोनों तो सेम ही है, बेसिकली बस एक्टिविटी पहले ईपीएफ था। हाँ, तो कंसेप्ट क्या है, पहले ईपीएफ था सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए, प्रोवाइड देम पेंशन, बिकॉज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को पेंशन मिलता है, प्राइवेट एम्प्लॉयज को नहीं मिलता है, सो ये क्रिएट किया गया ईपीएफ। बट बिकॉज कुछ होते हैं सैलरीड जो जो सैलरी पे काम नहीं कर रहे होते, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, लाइक से आर्किटेक्ट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इनका प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, किसी की सैलरी पे नहीं होते, बट इनको भी कोई एक प्लान चाहिए था। बेसिकली उनको टैक्स सेव करना था, सो टैक्स सेविंग के लिए उनके पास कोई प्लान था नहीं ईपीएफ का, सो उनके लिए गवर्नमेंट ने क्रिएट किया पीपीएफ। सिर्फ नेम चेंज है, बाकी सारी चीजें सेम है। ओके। तो लाइक इफ समहाउ लाइक ऐसा कोई ऑप्शन है मेरे पास कि मेरे पास सैलरी है, नाउ आई कैन पुट मोर सैलरी इनटू ईपीएफ और आई कुड गो फॉर म्यूचुअल फंड्स में अपना शेयर मतलब थोड़ा और खरीद लिया। अगेन म्यूचुअल फंड डिपेंड्स, मान लो मैं 12% का ले पा रही हूँ तो, बट उसमें यही है कि मैं उसको बहुत सालों तक नहीं रख सकती, मैं कभी भी निकाल सकती हूँ, राइट? एंड आई एम लुकिंग एट दैट एज अ बेनिफिट समहाउ कि ईपीएफ पीपीएफ पे तो मेरा पैसा लॉक हो जाएगा, उसमें मेरे को ये सोचना नहीं है कि मेरे पास वो पैसा है ही, क्योंकि वो बिल्कुल ही लिक्विड नहीं है। हाउएवर म्यूचुअल फंड्स में मैं उसको कभी भी निकाल सकती हूँ, तो दैट मीन्स कि वो कभी भी खर्चा हो जाएगा, राइट? तो उस सेंस में तो हेलो, हाँ बोलना, यस आवाज आ सर, रही यू थी। ऑडिबल, बोलो। हाँ तो मैं वही पूछ रही थी कि मेरे को उस सेंस से सोचना चाहिए कि ईपीएफ को इस तरह से देखो कि वो मेरा पैसा लॉक इन हो जाए, दैट मीन्स कि 15 साल के बाद या जितने भी साल के बाद बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ज्यादा, क्योंकि मैं प्रोन नहीं हूँ उस चीज को खर्च करने के बेसिकली। एक पॉइंट तो ये भी है ना, हमने डिस्कस किया था कि इन्फ्लेशन मतलब हर साल 7.5% से हो रहा है, यही होता है ना हर साल? नहीं नहीं, इतना हाई नहीं है भाई, 6%। इतना हाई मतलब तो इंडिया का इन्फ्लेशन। 6% मानते हैं, अच्छा हाँ। ओके, ओके 6 मानते हैं तो और मतलब उतने ही रेट से अपने को उतने ही रेट से अपना जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है ईपीएफ में शायद से 8 है और पीपीएफ में 1% ज्यादा है या कम है, आई डोंट नो। तो नहीं, एक दोनों तरह में से सेम होगा। नहीं, ईपीएफ में 8-9 था और पीपीएफ में 7-8 लिखा था, तो मतलब 1% नीचे है। ओके उनकी ठीक है। चेंज है क्या? अम, हाँ जो भी, तो मतलब एट द एंड ऑफ द डे, ऐसे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मतलब कि समझ रहे हैं, उतना ही इन्फ्लेशन के हिसाब से भी उतना ही मिल रहा है जितना तेरे को 15 साल पहले मिलता। हाँ मैं ये पूछ रही थी कि मतलब इज दिस वे ऑफ थिंकिंग अ गुड वे कि मेरा वो पैसा लॉक इन हो जा रहा है और मैं उसको बहुत टाइम तक खर्च नहीं करूंगी। ये सबने मीटिंग लीव कर दिया क्या? सिर्फ तीन, मैं और तुम दोनों ही हो? हाँ कर दिया सबने। आज नेट के भी अपेरेंटली इश्यूज थे पता एक्चुअली नहीं कुछ लोग के। सबके नेट के कुछ ना कुछ इश्यूज हैं, मतलब गार्गी हाँ का भी है, सुनील का भी था, वर्मा का भी है। सब एनीवेज, कॉलेज चले गए ना, अपने पीजी के इंटरनेट से परेशान है। यार मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ कि मेरे साथ भी सेम होने वाला है। ठीक है कोई नहीं। तू हाँ मई में जाएगी यार, तेरा तो मतलब कि ठीक है भाई। हाँ रौनक भैया तो अच्छा एनीवेज क्या पूछ रही थी मैं? हाँ हम्म अच्छा एक मिनट, ओके मैं एक बार शायद फिर से सुनील पूछती को हूँ। भी कुछ क्वेश्चन था। हाँ तो जल्दी पूछ, 5 बार पूछ चुके हैं यार। हम ओके रौनक भी आप सुन रहे हो ना? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। ओके मेरा क्वेश्चन बस ये है कि मैं अपने सारे फाइनेंशियल जो भी प्लानिंग ऐसे सोचती हूँ ना, मैं इस तरह से भी सोचती हूँ कि अगर मैं ये पैसा, जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि यार लिक्विड होना चाहिए ताकि अगर कोई इमरजेंसी आए तो मैं वो पैसा निकालूं। मुझे लगता है मेरी लाइफ में ऐसी कोई इमरजेंसी अभी तो नहीं है जिससे मेरे को अपने पैसे निकालने पड़े, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसी चीजों में डालूं जो लॉक कर दे मेरे पैसे को,
ताकि मुझे 10-15 साल बाद जब चाहिए हो तो वो सिक्योर रहे, यानी कि वो खर्च भी नहीं हुए बेसिकली और वो ग्रो भी कर रहे। Okay. So is So this a good way of thinking? investment Like, is, yeah, it depends on person. Depends on person to person. If you are someone who can't control himself to withdraw the amounts, then for sure it's good for you. हाँ, Every financial instrument is based on personal appetite. So even FDs and PPF, EPFs, they seem very good to older people. They don't want the risk. right. So हर इंस्ट्रूमेंट के So, पीछे मतलब उसके रिस्क, उसके एडवांटेजेस भी है और उसके बेनिफिट्स हैं और उसकी जो लाइबिलिटीज भी हैं. सो सारे मतलब पर पर्सन डिपेंड करते हैं उसको कितना रिस्क एपेटाइट है, उसको कैसे रिटर्न्स चाहिए, उसका गोल क्या है. बट मेरे को यही नहीं समझ आ रहा है, हाउ डू आई जज कि मेरा रिस्क एपेटाइट क्या है? लाइक अभी तो मेरे को पता भी नहीं है कि जब काम करने घुसते हैं तो क्या क्या रिस्क होते हैं। मतलब सैलरी में क्या क्या रिस्क है. मान लो मेरी एक सैलरी आ रही है, मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान अभी से स्टार्ट कर दिया कि इसमें मैं इतना तो डालने ही वाली हूँ। ठीक है, मान लो मैंने पीपीएफ ही स्टार्ट कर दिया। अब उसमें बोलते हैं कि रिस्क एपेटाइट तुम्हारी कितनी है, तुम कितना रिस्क कर सकते हो, एक तो कि लिक्विडिटी के मामले में कितना रिस्क कर सकते हो और इंटरेस्ट रेट के मामले में कि बढ़ेगा या घटेगा स्टॉक, वही सब। तो मेरे को एक तरफ अंकुर भाई को ये बोलता है हम लोग को कि तुम लोग का अभी यंग एज है, तुम लोग रिस्क ले सकते हो, तो क्रिप्टो में 10% डालो। फिर वो बोलता है इंडेक्स फंड्स लो, और वो बोलता है स्टॉक्स, इक्विटी स्टॉक्स लो, टेक्नोलॉजी वाले, लार्ज कैप, ये सब बोलता है वो। तो अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि जैसे अभी मैंने काम करना नहीं स्टार्ट किया, मेरी कोई पर्टिकुलर सैलरी नहीं है, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है लाइफ में, अभी तक स्टूडेंट हूँ मैं। तो इस समय पे कहते हैं ना सब कि तुम जितना जल्दी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो इट्स गुड। बट हाउ डू आई नो कि उस टाइम पे मेरे लिए क्या रिस्क एपेटाइट होगी? हाउ डू आई जज दैट कि किस मोमेंट्स पे आई मुझे लगेगा? पर्सनली फील कि आई हम्म। पर्सनली फील कि कोई कुछ भी बोल रहा है यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर, उस पे आपको बिलीव बिल्कुल नहीं करना चाहिए. जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है उसका आप नॉलेज ले लो, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके ड्रॉबैक्स क्या है, वो आप एक बार देख लो. उसके बारे में जो बेसिक क्राइटेरिया है वो देख लो. और आपके इंडिविजुअल आप कैसे हो तो आप ही सिर्फ जानते हो ना. मैं कैसे बोल सकता हूँ कि आपके लिए स्टॉक सही है या फिर बॉन्ड सही है. इंडिविजुअल डिपेंड करता है. सो आई कैन ओनली टेल हाँ यू अबाउट द एग्जैक्टली, बट इंफॉर्मेशन, बट वो तो आपको ही गेस करना है कि आपको जज करना है कि आप कैसे हो. तो एसेट एलोकेशन कुछ तो नाम के है ना, उसका भी हो सकता है क्या? क्या सुनील, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा. एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन, हाँ. हाँ हाँ, वैसी को बोलते हैं ना सो हम दैट अगेन कितना रिस्क। डिपेंड्स ऑन योर रिस्क एपेटाइट. If you're a risk averse person, you go more for bonds. Let's say 60% debt and 40% equity. If you're more risk on person, you'll go for 60% equity, 40% bond. Allocation तो मतलब वही है बेसिकली, आपको कितना रिस्क लेना है, कितना आपको गेन चाहिए. वही है उसका मतलब। अब हम जब स्टूडेंट होते हैं तो हमारा कोई रिस्क नहीं होता, लेकिन आई मीन हमारा रिस्क कोई भी पैसा है वो हमारा ही पैसा है, मतलब उसका कोई क्या बोलते हैं, कोई एक्सीडेंट में या कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब उसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फुल आप रिस्क। जैसे बोल रहे हो ना. हाँ बट पर्सनली आई फील रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी ज्यादा होती है. आप लोग इन्वेस्टमेंट के प्लान से सोच रहे हो, सही है. रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ये भी है कि आपको खुद को अपस्किल करना है ना. योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट एट दिस स्टेज इज इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ. Go for more courses, go for upskilling yourself, हाँ। do unpaid internships. सस्टेन करने में आपके काफी कैश बर्न होगा. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके खुद के ऊपर तो है, हाँ, बट फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, कोई आपके फिलहाल एक्सपेंसेस नहीं है, वो अग्रीड है. हाँ लेकिन मेरा रिस्क रेट तो स्टूडेंट में एम्प्लॉय से ज्यादा आया है ना। ये हेलो। फिर से थोड़ा थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन हो गया, बट इसमें अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन, तो मेरा ओपिनियन ऐसा है कि एम्प्लॉय भी क्या कर रहा है. सिर्फ जब भी आप इनिशियल ईयर्स में एम्प्लॉयमेंट में जाओगे, एट द एज ऑफ 23-24, जो भी एज होगा, सो उस टाइम पे आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ हाई नहीं होंगे. आपको सिर्फ खुद को सस्टेन करना है, राइट. सो खुद को सस्टेन तो आपको शायद अभी भी वही करना होता होगा. यस। अभी सिर्फ आपको थोड़ा सा मतलब फैमिली से हेल्प मिल जा रही होगी, बट आपको तभी भी अपस्किल करना खुद को होगा ना. बिकॉज हाँ एक हाँ। बार आपने ग्रेजुएशन या फिर कुछ भी आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट कर लिया, उसके बाद भी आपका लर्निंग कभी स्टॉप नहीं होता. हम्म।
Okay, garbage having net issues. सुनील, सिमरन, कोई और डाउट्स या क्वेश्चंस है? नहीं, मेरे को तो अभी कुछ नहीं है। मेरा एक पीपीएफ में एक डाउट था। हाँ, ये आप जो बोल रहे हैं ना, जो एक ईयर में 1.5 लाख से आपको डिडक्शन होता है, सैलरी में डिडक्शन मिलता है टैक्स में। हाँ, हाँ, वो सिर्फ पीएफ के लिए है और पीएफ प्लस इंटरेस्ट पेमेंट्स, वो क्या बोलते हैं, टीडीएस रीपेमेंट, वो सब मिलाकर है 1.5 लाख, अप टू 1.5 लाख डिडक्शन। सुनील थोड़ा फिर से क्लियरली बोलना। मतलब जो मैंने कहा ईपीएफ में जो आप नहीं मतलब इन्वेस्ट कर रहे हो वो, प्लस आपने बोला इंटरेस्ट का ना। हाँ, मतलब वो क्या बोलते हैं, वो डिडक्टेबल इनकम होता है ना, वो पीएफ के लिए अलग ही है या अंडर एटीसी वो सब मिलता है ना, जो हमारा होम लोन हो गया उसका इंटरेस्ट हो, या क्या बोलते हैं, और एजुकेशन लोन नहीं, दोनों का और डिफरेंट एटीसी। कोई भी जो डिडक्टेबल इनकम है हाँ, सो होम लोन इंटरेस्ट का आपको उसका बेनिफिट मिला मिलता है, बट वो एटीसी नहीं है। नहीं है। हाँ, और जो आपने क्वेश्चन था ना पीएफ का, सो पीएफ में देयर इज पीएफ इज हाँ, कंप्लीटली टैक्स फ्री ऑप्शन। हम लोग 3 पॉइंट्स पे, सीए में 3 पॉइंट्स में हम लोग आपका इनकम कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट होता है इन्वेस्टमेंट, जो आपको मिला है आपके हाथ में, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पॉइंट, सेकंड इंटरेस्ट जो बेनिफिट मिल रहा है उस प्लान से, थर्ड विड्रॉवल। तीनों स्टेज पे पीपीएफ इज टैक्स फ्री। So investment ओके। in PPF, interest from PPF, withdrawal from PPF, tax free. हाँ, बट अगर आपने तो प्रीमेच्योर विड्रॉवल किया अपना पीपीएफ तो टैक्स लग जाएगा। अगर कोई और डिडक्ट हो वो इसमें नहीं आता, वो अलग ही है, क्या डिडक्ट को? अलग डिडक्शन। डिडक्ट तो बहुत अभी सारे मैं यार, बोला ना जैसे, डेफिनेटली बोलना पड़ेगा मुझे। नहीं नहीं, वो मतलब मैं बस ये बोल रहा हूँ कि वो पीएफ और उसका कोई रिलेट नहीं है। वो अगर हम पीएफ में अगर एक साल में 1.5 लाख तक डिडक्ट करते हैं, फिर भी हम किसी और सेक्शन में डिडक्शन ले सकते हैं टीडीएस का और होम लोन इंटरेस्ट में। ये तो मतलब अभी बहुत डेप्थ में टैक्स प्लानिंग का अभी एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट होगा, बट एटीसी में लिमिट है 1.5 लाख। सो एटीसी में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, उसमें एक पीपीएफ है। सो अगर आपने सारा क्लेम कर लिया पीपीएफ में 1.5 लाख, आपका एटीसी एग्जॉस्ट हो गया, फिर आपको कोई और सेक्शन में आके क्लेम करना होगा। एटीसी एग्जॉस्ट हो गया। फॉर एग्जांपल एटीडी एटीसी है। में कौन कौन से आते हैं, मतलब मेन में कौन सा आता है एटीसी में? मेन जो मतलब जनरली यूज करता है वैसे है ना, हाँ, पीपीएफ, एलआईसी, ईएलएसएस, सुकन्या समृद्धि स्कीम, ओके ओके। और बहुत सारे स्कीम्स होते हैं ऐसे, उन सबको मिलाकर 1.5 लाख। सबको मिलाकर। ओके ओके, थैंक। गवर्नमेंट बिल्कुल थोड़ी कुछ तो टैक्स लेगी ना आपसे। हाँ, थैंक्स। मैं बस पूछ ही रहा हूँ, मैं अभी 19 साल का हूँ, फिर भी पूछ रहा हाँ, वो मुझे पता है। मतलब कि जल्दी निकालने से टैक्स लगता है? ओह, ये नहीं पता था मुझे। इमरजेंसी? हाँ, मतलब कंडीशन फुलफिल नहीं की है तो टैक्स लगता है। ओ, मतलब कि इमरजेंसी हुआ तब उस केस में नहीं लगेगा? डिपेंड करता है इमरजेंसी कौन सी है। ये मतलब काफी इन डेप्थ लॉ का है। So, ये कवर अप तो ना करे तो बेटर है, बिकॉज ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अच्छा, मतलब कि कुछ क्राइटेरियाज हैं, उसके बाहर अगर निकाल रहे हैं जल्दी हाँ तो कुछ टैक्स लगता है। ओके, तो वो उस हाँ, समय बिकॉज तक का। गवर्नमेंट ने आपको जब वो बेनिफिट दिया है ना पीपीएफ हाँ का, हाँ हाँ हाँ। बिकॉज वो आपका जो ओरिजिनली वो आपकी इनकम थी, करेक्ट, बट उसका आपने हम्म बेनिफिट लिया डिडक्शन का क्लेम करके। बट हम्म अगर आप हम्म, उसको हम्म, नेक्स्ट ईयर में, या जैसे लेट्स से आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, इंडिया में फाइनेंशियल ईयर एंड्स एट 31 मार्च, करेक्ट। ओके, या मेरे को टैक्स बेनिफिट चाहिए, तो मैंने 30 मार्च को 1.5 लाख इन्वेस्ट किया पीपीएफ में, और मेरा टैक्सेबल ईयर खत्म हो गया 31 मार्च को, और मैंने लेट्स से 1 अप्रैल को सारा विड्रॉ कर लिया। 30 को इन्वेस्ट मैंने किया और नेक्स्ट टैक्स ईयर बेनिफिट भी क्लेम 31st कर को लिया। हाँ, सारा नेक्स्ट विड्रॉ कर नेक्स्ट ईयर नहीं, लिया। ओ, नेक्स्ट मंथ 2 दिन अच्छा, में ओ विड्रॉ कर सॉरी लिया सॉरी, मैंने। नेक्स्ट मंथ। ओके। हम्म। नेक्स्ट मंथ अप्रैल, बट वो नेक्स्ट ओके। फाइनेंशियल ईयर है ना। So, मेरा हाँ हाँ इनकम हाँ लास्ट ईयर हाँ। तो मेरा डिडक्शन मिल गया मुझे, और नेक्स्ट ईयर मेरा इनकम फिर से आ गया।
हाँ यहाँ पे गवर्नमेंट को लॉस हो गया ना 1.5 लाख का, ओह बिकॉज मैं टैक्स तो उसमें 1.5 लाख भरूंगा नहीं, उसमें क्लेम कर लिया पीपीएफ में, पर नेक्स्ट ईयर मैंने विड्रॉ भी हाँ कर लिया। हाँ अब हाँ बिकॉज पीपीएफ विड्रॉ भी टैक्स फ्री है, मेरे टैक्स तो मैंने कुछ नहीं पे किया और 2 दिन से इन्वेस्ट किया था मैंने। अच्छा प्रैक्टिकली बहुत सारे केसेस है, इनके बेसिस पे बहुत सारे लॉस चेंज हुए हैं, लोगों ने हाँ बहुत कुछ हाँ ट्राई किया टैक्स इवेशन में, हाँ, जैसे जैसे हुआ होगा ट्रायल एरर वैसे वैसे लॉस भी आए होंगे। सही बात है। बहुत कुछ टैक्स इवेशन हुआ है। तो बेस्ट टाइम कब होता है अगर कोई अप्लाई करना चाहे पीपीएफ के लिए, तो बेस्ट टाइम क्या होता है? जैसे आपने 30 बताया, तो वैसा कुछ होता है? 30 मैंने वो टैक्स इवेशन का एग्जांपल लिया था, कुछ बेस्ट नहीं है वो। हाँ अच्छा ओके। मतलब फिर भी किसी तो हमारी कभी तो बात हो रही थी कि फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में वाह सौम्य अभी आ रहा है, तो ऐसा कोई कोई स्पेसिफिक मंथ होता है जिसमें ज्यादा मतलब ज्यादा बेनिफिट मिले? मतलब आपके ओपिनियन में कौन सा बेटर होता है आपका ओपिनियन? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, करेक्ट है वो, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है, बट पीपीएफ में क्राइटेरिया है कि जो आपका इंटरेस्ट है ना, वो पर हाँ मंथ हाँ ऐसे पर मंथ सब में सेम डिवाइड नहीं होता, वो शायद ईयर एंड में क्रेडिट होता है आपके। जैसे अगर आपने इन्वेस्ट किया लेट्स से जैन में 1 लाख, हाँ हाँ तो आपका पूरा इंटरेस्ट जो है ना कंपाउंड होगा शायद 1 साल में। जैसे मोस्टली जो जैसे बॉन्ड्स में होता है वो आपका हर 3 मंथ पीरियड में होता है क्रेडिट, या फिर 2 मंथ्स में होता है, जो होता है पीरियड कंपाउंडिंग पीरियड जिसको बोलते हैं। हम्म। बट आई थिंक पीपीएफ तो कंपाउंडिंग पीरियड 12 मंथ्स का है, मतलब पूरे ईयर में जो इंटरेस्ट गेन होगा उसके बाद में वो इंटरेस्ट कंपाउंड होगा। सो वो क्राइटेरिया है शायद, बट ये भी हाँ, इतना कुछ नेग्लिजिबल है इंटरेस्ट रेट, इस पे इतना सोचना ओके ठीक कुछ है खास ओके। मतलब कुछ जरूरत नहीं है सोचने की, बिकॉज ये फिक्स इंटरेस्ट है ना। हाँ 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 राइट। मैं किसी वीडियो में देखा था कि हम अगर 5 तारीख किसी महीने के अंदर डालते हैं तो उस मंथ का भी इंटरेस्ट मिलता है, नहीं तो नेक्स्ट मंथ से हाँ कैलकुलेट होता है। बेनिफिट होता होगा, बट यार कितना है 0.5, कितना गेन कर लोगे यार 0.5% से। ये हाँ, बात तो नहीं है। नहीं, एक मंथ से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम हमारा इतने छोटे 15 साल चीज पे में भी टाइम वेस्ट अगर नहीं करना लास्ट में चाहिए। इसमें 0.5% इंटरेस्ट मिल रहा पीपीएफ की बात कर रहे हैं, मतलब कि जैसे फिफ्थ के पहले जीरो करेंगे तो वो पॉइंट फाइव नहीं, एट उस पॉइंट फाइव महीने उस महीने का भी है। अच्छा। मिलेगा। हम्म। अच्छा। तो सौम्या 2 मिनट बचे मीटिंग खत्म होने में। ये फिर से वैसा क्यों हो गया? पहले तो नहीं हो रहा था। कारगिल ने लीव कर दिया था। नहीं गार्गी है यहीं अरे पे। हाँ, नेट इश्यूज तुम सही नहीं सभी है। ने लाइक कैमरा क्यों ऑफ कर रखा है? सबके नेट इश्यूज है, इसकी मेरा तो नेट आवाज इश्यूज है। कम आ रही है, तो मैंने कहा बंद ही कर देते हैं अभी। अच्छा। कोई नहीं, तू भी बंद कर सकते हैं। कोई नहीं यार, अभी सौम्या है, सौम्या डाउट्स चालू कर देगा पूछना। और नहीं तो क्या। हाँ पता है, मेरा दिमाग हम्म, इसलिए तेज भाग रहा है कि सौम्य स्टार्ट करे उससे पहले मैं अपने सारे पूछ लूं। अ, मेरे को ये पूछना था, हाँ। सबसे पहले रौनक भैया, हम लोग ने अभी ईपीएफ टीपीएफ पढ़ा, हम मैं सोच रही हूँ अब नेक्स्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी पढ़ ले हम लोग, और क्या क्या पढ़ना चाहिए थोड़ा बता दो ना। क्या पढ़ना, क्या आपको इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं? हाँ सिक्योर वाले हाँ, हाँ। अभी के लिए यही, हाँ। बेसिकली ना दो टाइप होते हैं, दो ही टाइप होते हैं, कहीं भी चलिए वो दो टाइप में फॉल करेंगे। फर्स्ट इक्विटी, इक्विटी विल टेक ओनरशिप ऑफ द एसेट, और अगर आप ओनरशिप ले रहे हो तो आपको लॉस भी झेलना पड़ेगा, बिकॉज ओनरशिप लिया है। फर्स्ट इक्विटी होता है। दूसरा इज डेट, डेट में लोनिंग योर मनी। सो इसमें आपको लॉस मतलब रिस्क तो होता ही है, बट आपका इसमें जो गेन है वो फिक्स होगा, लॉस मोस्ट ऑफ टाइम नहीं होता है, बट फिर भी कंपनी डूब गई तो हो सकता है। सो वो डेट, दो टाइप में फॉल रौनक करेंगे भैया सारे इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेस्टमेंट सॉरी इंस्ट्रूमेंट्स। सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन 1 मिनट के अंदर मीटिंग खत्म हो जाएगी, तो वापस रीजॉइन कर लेते हैं। चलेगा, फिर से ज्वाइन कर लेंगे। हाँ अभी कर लेते हैं यार। हाँ, मतलब फिर वो आप इंटरप्ट हो जाओगे, कट जाएगा इसीलिए। एंड कर। तो मैं एंड कर चलेगा, रही हूँ, ठीक सेम है। लिंक है ना। हाँ हाँ सेम लिंक। ओके। रौनक भैया कंटिन्यू।
हाँ, सो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स तो दो टाइप होते हैं, इक्विटी एंड डेट। इंस्ट्रूमेंट्स सारे इसमें फॉल करेंगे। सो इक्विटी इज बेसिकली ओनरशिप, डेट इज लोनिंग योर मनी टू समवन एल्स। सो म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, स्मॉल केसेस, इवन क्रिप्टो टू सम एक्सटेंट, ये सारे इक्विटी है बिकॉज यू टेक ओनरशिप ऑफ समथिंग। और डेट में फॉल करेगा आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, डेट डेट म्यूचुअल फंड्स, ये सारे। और जो पीपीएफ ईपीएफ है, जैसे टाइप ऑफ टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स, बट ये बेसिकली डेट है बिकॉज इनका फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। सो इसमें लोनिंग योर मनी टू द गवर्नमेंट। अच्छा हाँ, हाँ हाँ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। सो लाइक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, देयर इज आल्सो गवर्नमेंट बॉन्ड्स। राइट। प्लीज एक जगह लिख लियो सिमरन। आप अपना हाँ मैं choose लिख करके रही हूँ। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब इनमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं, बट दोनों अगर आप देखोगे ना, मतलब ये बेसिक्स में दो ही चीजें हैं, इक्विटी एंड डेट। तो आपको अकॉर्डिंगली प्लान करना चाहिए। बाकी तो बहुत सारे स्कीम्स लाते रहेंगे। हम्म। ठीक है, तो काफी कुछ है यहाँ पे तो इक्विटी में। सबसे बढ़िया 12% क्लब में पैसा डालो, 12% सीधे उठाओ, क्या ही इन्वेस्ट करें। 12% क्लब क्या? भारत पे का एक ऐप है, वो बेसिकली उसमें 1 लाख रुपए तक आप डाल सकते हो, एंड उस पे आपको जैसे सेविंग्स अकाउंट में 3-4% का इंटरेस्ट मिलता है ना, तो उसमें हाँ आपको हाँ। 12% का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि ओ लाइक इससे उसका मोहम्मद बेसिकली जैसे प्रॉफिट बोल दिया, उसका एक बार रिस्क बताना। उसका उसका रिस्क रिस्क बताइए। बताना, रिस्क रिस्क क्या है? रिस्क कुछ नहीं है। देखो कुछ रिस्क नहीं है। फिर तो है डालो तो रिस्क डाल मतलब। दो। 1 लाख रुपए तक डाल सकते हैं उसमें, एंड कुछ विड्रॉल वगैरह का चार्जेस कुछ नहीं है। भारत पे का है, अगर वो उसके लोन पीछे का दिया तो, लोन रिपे नहीं किया तो क्या? करेक्ट, करेक्ट। आप किसी को वो 12% क्या क्लब ये है ना कि हम अगर आप पैसा डालना चाहते हो तो 12% में डाल सकते हो, या आप 12% पे लोन ले सकते हो। अगर वो लोन रिपे नहीं किया तो हमारा गया पैसा। लोन रिपे? अरे यार, कोई भी सो कंपनी ऐसे ही तो वो लोन लोग नहीं दे इससे देगी। गेन करते हैं। कोई भी कंपनी ऐसे ही तो लोन नहीं दे देती है, तो बेसिकली उनके पास भी एक कोई वो कंपनी नहीं देगी, प्रोसेस है। लेकिन भारत पे तो डायरेक्ट कोई कोलेटरल नहीं रह रहे। उसे तो विंटेल अच्छा है, मेरा मेरा ओपिनियन से। विंटेल में कोलेटरल भी लेते हैं, लेकिन यहाँ कोई कोलेटरल भी नहीं लेते हैं, इसीलिए तो शायद। इसीलिए तो फिर आप अगर कोलैटरल की तरह से देखोगे तो फिर आपको उतना कुछ वो तो जो मिलेगा। लोग अगर लोग बैंक से लोन क्यों नहीं लेना चाहते हैं? क्योंकि बैंक से लोन लेने में झंझट है। कौन उतना पेपर वर्क में जाएगा, कौन उतना कोलैटरल करेगा? अभी मैंने एजुकेशन लोन लिया था, मुझे 3 महीने बैंक दौड़ने पड़े। अभी ये पेपर लेके आओ, अभी वो पेपर लेके आओ। कोई क्यों इतना करेगा? अगर मेरे लेकिन को कोई फिर भी आपने कंपनी आके बोल दे, भाई मैं 12% में तो नहीं लिया होगा। 12% 12% में क्लब नहीं से तो लेते ना। नहीं लिया होगा लोन। 12%, हाँ वही बोल रहा हूँ, अगर कोई ले रहा है उसको, उसका मतलब ये है कि उसको बैंक नहीं दे रहा है, तो रिस्क तो ऐसा होता ऐसा ही है, नहीं है एटलीस्ट कि मेरे हिसाब बैंक से। नहीं दे रहा है। बैंक बहुत सारे रीजन की वजह से नहीं देता है। 12% क्लब बेसिकली क्या करता है कि सिविल स्कोर चेक करता है, उसके बाद ही किसी को देता है पैसा। एंड उसका लाइक वो है, रिकवरी का मेथड है कि लाइक वो हर दिन आपके अकाउंट से काटता है, हर दिन। हाँ तो आपको उतना कोई वो भी नहीं पड़ता किसी के ऊपर कि लाइक महीना कर देना है भाई 10,000। अगर आप उसको डेली डिवाइड कर लोगे तो वो बहुत ही कम अमाउंट हो जाता है, तो लोग ओके। आराम से कर लेते हैं। प्लस बेसिकली वो वहाँ पे 12% क्लब वहीं पे लोन नहीं देता है, वो जो हमसे पैसा लेता है वो मर्चेंट को पैसा देता है, और मर्चेंट से ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, तो ओके उससे भारत पे बीच का मार्जिन कमाता ओके ओके। है। एंड अब तो कुछ दिन वो कंपनी वहाँ पे भी जाने वाली है आईपीओ में, भारत पे। मतलब सौम्य तो कह रहा है कोई रिस्क नहीं है इसमें ऐसा।
मेरे को तो नहीं लगा रौनक भाई, आपका क्या ओपिनियन में इसमें 12% क्लब में? जो सौम्या ने बोला वो करेक्ट है। 12% का ऑन वैसे ही करता है, तो आपसे वो 12% पे पैसे उठा लेगा और आगे जो है मर्चेंट्स को 24% पे लोन करता है। 24% है ईयरली रेट। और वो मर्चेंट्स की डेली जो इनकम होता है जो भारत पे क्यूआर से आया है उसमें डिडक्ट कर लेगा विद इंटरेस्ट। बट इसमें सबसे बड़ा वही है कि ये अनबैक्ड लोन्स है। इनके पीछे कोई एसेट नहीं है, कोई कोलैटरल कोई कोलैटरल नहीं है, सारे अनबैक्ड लोन्स हैं। तो किसी ने डिफॉल्ट भी किया सो यू हैव नो रेमेडी। तो विंडमिल में तो कोलेटरल बेस्ड होता है ना विंडमिल? नहीं, बॉन्ड्स भी आते हैं कोलैटरल्स, बस जो मोस्टली होते हैं वो कोलैटरल उनके पीछे होता है। बट बॉन्ड्स कंपनी भी इशू करती है जिसमें कोलैटरल नहीं होता, जिसको हम लोग कमर्शियल पेपर बोलते हैं। हाँ। तो कमर्शियल पेपर भी सिमिलर होता है, उसमें कुछ आपका एसेट बैक नहीं होता। अच्छा, मर्चेंट्स क्या होते हैं? सेलर्स, शॉपकीपर्स। हाँ, ट्रेडर्स, सेलर्स सारे। ओके। मेरे को तो उतना कुछ नहीं लगा ये रिस्क, तो फिर वो सही है। लाइक अगर मिनिमम साल अमाउंट क्या है 12% क्लब के लिए? 1000 1 लाख क्या? ओ अच्छा, मतलब पर मिनिमम 1000 है और मैक्सिमम 1 लाख है। और वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है कि लाइक आपको SIP करते रहना है। आप जैसे जब डालना चाहो डालो, जब निकालना चाहो निकालो। हाँ, तरीके मैं का। जब उसका क्या बोलते हैं रिव्यू देख रहा था, उसमें बोल रहे थे कि जब हम पैसा डालते हैं तो तुरंत ले लेते हैं, लेकिन जब हमका विड्रॉ कर लेते हैं तो इश्यू आता है। वो क्या बोलते हैं उसमें जो बहुत कुछ बोल रहे थे, उसका रेटिंग उतना हाई नहीं आप था, आप इसलिए मुझे तो लगा। आप प्ले स्टोर के रिव्यू को ध्यान देते हो? देता हूँ। मैं नहीं देता। मेरे को लगता है कि लाइक वो दूसरे कंपनी वाले ज्यादा पैसा दे के वो करवा देते हैं। हाँ, एक Play- तो कर सकते हैं, लेकिन हाँ, सबका सब वैसा ही अरे होता ये तो। छोड़ दो यार, तुम लोग अपने पर्सनल ओपिनियन अपने अभी जाने दो। यहाँ पे देखते हैं, डिस्कस करते हैं जब डाउट्स ओके का कुछ जो भी रहेगा इंस्ट्रूमेंट्स को ओके लेकर। ओके। हाँ, जब हम सेफ इन्वेस्टमेंट में कुछ प्लान सब करते कुछ हैं ना। कहते हैं यार, तुम लोग रिस्की हो सकता है। ओके। जब हम सेफ इन्वेस्टमेंट में कुछ प्लान करते हैं तो आइडियली कितना परसेंटेज मिला तो उसको क्या बोलते हैं हम ले सकते हैं? तो जब तू सेफ बोल रहा है ना, उसको कोई परसेंटेज मत लगा। सेफ का मीनिंग वही कि तेरा मनी सेफ होना चाहिए, तेरा कैपिटल सेफ होना चाहिए। ओके। बट सो एटलीस्ट इन्फ्लेशन एटलीस्ट के रेट का इन्फ्लेशन तो के मिलना ऊपर तो चाहिए ना। होना चाहिए। हाँ, हाँ। सो कैपिटल जब सेफ होगा तो आपका इन्फ्लेशन भी काउंट होगा, बिकॉज अगर इन्फ्लेशन काउंट होगा तो नेक्स्ट ईयर तो कैपिटल लॉस होना ही है ना। हम्म। तो व्हेन आई से कैपिटल सेफ होना चाहिए, बट उसमें इन्फ्लेशन काउंट ही हो रहा है, तो उसके ऊपर ही ग्रो करना है। अच्छा, एक चीज बताओ मेरे को, ये एनविटी वाले जो प्लान्स होते हैं उनका क्या फायदा है? एन्युटी प्लान हाँ, लाइक जो रिटायरमेंट वाले होते हैं ना एनविटी प्लान्स की, एक बार में उन्हें बहुत सारे जब फंड दे पेंशन दो और मिलता वो है या फिर आपको। वन टाइम मिलता है हाँ बेनिफिट एंड में ना। हाँ हाँ, पेंशन टाइप। लाइक वो तो मेरे को लगा लॉस है। अभी तेरे को पता है कि नॉलेज है फाइनेंस का, तेरे को लॉस लग रहा है, बट जो नॉर्मल बन रहा है उसको पता ही नहीं है ना, तो वो सोच रहा है, उसने कभी कैलकुलेट किया नहीं रिटर्न कितना मिल रहा है। हाँ उसको सिर्फ ये दिख रहा है कि मैं इतना इन्वेस्ट करूंगा, मुझे बाद में इतने पैसे मिलने वाले हैं पर मंथ, तो मैं क्यों नहीं करूँ। हाँ क्या होता है उसमें? जिसको नॉलेज है वो समझ रहा है कि हाँ लॉस है। जैसे तूने अभी, तुझे पता है कि कैसे रिटर्न कैलकुलेट करते हैं हम लोग, करेक्ट। हाँ हाँ। जैसे मुझे 1 ईयर रिटर्न कितना मिल जाएगा, बट कोई नॉर्मल बंदा है, उसको आइडिया ही नहीं है कि रिटर्न कितना मिल सकता है मुझे। हम्म सो वो सब कंपेयर कर रहा है, मेरा मंथली पैसे कितने मिलेंगे मुझे, एब्सोल्यूट मनी देख रहा है वो चेक हम्म नहीं कर रहा है, तो उस पैसे का वैल्यू उस टाइम पे होगा ही नहीं। हम्म।
एन्युटी प्लान सारे बेसिकली schemes गारगी बने होता मौसम है, के ऊपर। हाँ, कि लोग कैसे बाय करते हैं उसे। हम्म। हम्म। और मेरे को तो लगता है ये सारी चीज ज्यादातर इंडिया ही में होते होंगे, बाहर में नहीं होते होंगे। एनीवेज गार्गी वो होता है एन्युटी प्लान जिसमें लाइक एनपीएस या फिर ईपीएफ पीपीएफ जितने भी होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि आपको जो आखिरी में इतना मैच्योरिटी अमाउंट मिला वो बहुत ज्यादा होता है। तो लोग क्या करते हैं, उसे इंश्योरेंस कंपनी की एन्युटी प्लान खरीद लेते हैं। उसमें होता क्या है कि आप जब जितना पैसा डालोगे उसके बाद फिर आपको एक लाइक आपका वो डिवाइड कैलकुलेट होगा कि आपको हर मंथ कितना पेंशन मिलेगा। ठीक है, अगर आपको ज्यादा पेंशन लेना है तो लाइक फिर वो कम हो जाता है, कुछ ऐसा होता है ना। वो फ्लक्चुएट कर सकते हैं हम लोग कितना हम लोग चाहते हैं, एंड फिर उस हिसाब से फिक्स कर सकते हैं। तो वो हमें फिर हमारा सारा पैसा वो ले लेंगे और फिर हमें हर महीने पेंशन की तरह देंगे हमारा ही पैसा। ये होता है एन्युटी प्लान। स्पेलिंग बताइए एक बार। ANUITY। ANNUIT। ओके ANN, सॉरी। ओके ओके। वो मतलब बस डिस्ट्रीब्यूट करते लेके कुछ ऐसे। उस पे इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, ओ, लेकिन बहुत ही कम मेरे मिलते को हैं। लगा कि कम मिलता ओ, है। हाँ हाँ हाँ, तब तो तो तुझे क्यों लगी एक लॉस है? लाइक 6 से पहला कम तो ये कि मिलते हैं। लाइक इंटरेस्ट वो मिलता है। एंड दूसरा, लाइक उसमें देखो प्लान होता है ना कि आपको सबसे जैसे उसमें 3-4 तरह के एन्युटी प्लान होते हैं। जैसे मैंने देखा था, पहला होता है कि लाइक अगर आप वो करते हो कि आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, ठीक है, तो आपको सारा पैसा अपना देना होगा, लेकिन आप कोई नॉमिनी नहीं दे सकते। लेट्स से मैंने 40 लाख रुपया दिया एक एन्युटी प्लान खरीदने के लिए, एंड मेरा कुछ 40-50 हजार का, मैं एक रैंडम नंबर बोल रहा हूँ, मेरा पेंशन बन गया, ठीक है, एंड वो अब मेरे को देगा जब तक मैं मर ना जाऊँ। लेकिन अब मान लो मैं मर गया 3 साल में ही, 4 साल में ही, ठीक है, मेरे सारे पैसे तो बचे रहे, और वो अब वापस नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने हाई रिटर्न वाला प्लान चूज किया था। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे बचे हुए पैसे मेरे नॉमिनी को वापस मिले, तो मुझे कम रिटर्न वाला प्लान लेना पड़ेगा। ऐसा सिस्टम होता है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि भाई ओके। क्या ही फायदा है इस चीज़ का। अगर हाँ हाई मतलब रिटर्न रिस्क लेते तो हैं है। तो फिर सारा पैसा चला गया, क्योंकि हम्म। फिर आपका वो तो होता ही है ना कि आप कितने दिन रहोगे। इससे तो 3 साल। एनपीएस बेटर है। एनपीएस में ही तो ये होता है, एनपीएस में तो फिक्स है कि आप 60% आपको एन्युटी में मतलब 60% आप विड्रॉल कर सकते हो, 40% आपको एन्युटी खरीदनी ही पड़ेगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कोई एनपीएस में होता है क्या? हाँ, एनपीएस में फिक्स है ये चीज़ कि आपको 40% की एन्युटी खरीदनी ही पड़ेगी। तो पीएफ लेते हैं, 15 साल में हो जाएगा। हाँ, मैं तो ये बस ऑप्शन। हमारा यहाँ का जो एफडी है ना, जो एक सोसाइटी है, उसमें 10% उसी उसी में काल चला लूंगा। वो चिट फंड हुआ दोस्त। नहीं नहीं, चिट फंड नहीं, वो सोसाइटी है जो अभी प्रॉफिट में है, तो जब तक वो प्रॉफिट में है तब तक उसमें मैं भरोसा है। एक आप कम्युनिटी वाला वो बैंक कम्युनिटी जैसा वाला है, वो बात कर रहे कॉर्पोरेशन बैंक बोलते हैं ना। हाँ हाँ, वही वही। नहीं नहीं, हो, जहाँ कम्युनिटी पे नहीं है, ग्रुप एक सारे ग्रुप बैंक ऑफ जैसा ही है पीपल वो डालते हमारा। हैं पैसा। एक नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है, वो बैंक जैसा ही है, वो अंडर आरबीआई आता है। लेकिन उस क्या बोलते हैं, सोसाइटी बोलते हैं ना। कोऑपरेटिव बैंक। कॉर्पोरेशन बैंक और सोसाइटी। कोऑपरेटिव बैंक। हाँ 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 हाँ, वही। इसमें क्या होता है? वो बैंक से ज्यादा ब्याज देते हैं नॉर्मल बैंक से। बस थोड़ा रिस्की होता है जब तक वो प्रॉफिट में नहीं है, मेरे हिसाब से, फिर पता नहीं। तो कोऑपरेटिव और बैंक्स क्या है ना, जैसे हम लोग है, ये व्हाट्सएप ग्रुप में कम्युनिटी है जो सारी, हमें कम्युनिटी खुद के बैंक एस्टैब्लिश करना है, हमें खुद को रिलेटिवली चीपर इंटरेस्ट रेट पे लोन अपने मेंबर्स को देना है, सिर्फ मेंबर्स को देना है, बाकी सबको नॉर्मल लोग को नहीं। सो कोऑपरेटिव बैंक में विल फॉर्म अ कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक में हम मेंबर्स हैं, हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बैंक को दे रहे हैं, और बैंक दे रही है आगे अपने मेंबर्स को लोन में। सो बैंक उसमें अपना मार्जिन थोड़ा कम कर लेती है, बिकॉज हमारे मतलब बैंक के मेंबर्स कौन है, हम मेंबर्स हम ही हैं, लोन्स भी हम अवेल कर रहे हैं, सो मार्जिन गेन भी हमें मिलने वाला है ना।
तो हम लोग उसमें अपना इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम कर देंगे लोन का, और जो इंटरेस्ट मिलता है सेविंग्स डिपॉजिट और एफडी को वो भी थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। तो लाइक ये बैंक का जो सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो लाइक उस पे आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं है क्या? नहीं, बैंक के किसी भी रेट में कोई आरबीआई कंट्रोल नहीं, डायरेक्टली कंट्रोल नहीं, इनडायरेक्टली बहुत सारा है, डायरेक्टली बिल्कुल नहीं। अच्छा। सौम्य तूने बहुत बार सुना होगा ना कि जब जब अपने बैंक रेट कट करते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो हम्म रेट, जब आरबीआई हम्म कट करता है, हम्म सो इससे क्या होता है कि रेपो रेट क्या है, जिस जिस इंटरेस्ट रेट पे ना बैंक पैसे उठाता है आरबीआई से, हम्म ठीक है। तो अगर आरबीआई ने ये कम कर दिया, सो बेनिफिट किसको मिल रहा है? कमर्शियल बैंक्स को। हम्म सो कमर्शियल बैंक्स अगर चाहे तो बेनिफिट पास ऑन कर सकता है कस्टमर्स को, बट ये उस पर डिपेंड करता है करना है कि नहीं करना। उसको आरबीआई हम्म डायरेक्टली मैंडेट नहीं बोलता कि अपना जो इंटरेस्ट रेट लोन का है वो कम कर दो, बिकॉज हमने कम किया ना, तुम भी आगे कम करो, ऐसा कोई हम्म रूल नहीं है। कमर्शियल बैंक में डिपेंड करता है, बट बेस क्योंकि इतना कंपटीशन है, कमर्शियल बैंक अगर किसी एक ने भी कर दिया ना, जैसे एसबीआई तो गवर्नमेंट बैंक ही है, हम्म वो तो पहले कर देगा, आरबीआई ने किया तो। अगर हम्म उसने किया और जैसे एसबीआई में लोन मिल रहा है आपको 9% पे, बाकी सारे बैंक डायरेक्ट 10% पे, तो सब हम्म लोग एसबीआई के पास चले जाएंगे। सो उनको करना पड़ता है, इनडायरेक्टली करना पड़ता है, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। ओके। वही मतलब मार्केट में स्टे करने के लिए उनको लाइक वो करना पड़ता है। हाँ, वो करना ही बाकी पड़ेगा। ये तो एयरटेल जियो वाली बात हो गई। हम्म 11 बजने वाले हैं गाइस। और कोई क्वेश्चन है किसी को? सोच रहा हूँ। प्लीज सोचो। हम्म गार्गी सिंस यू आस्क इन्वेस्टमेंट कैसे प्लान करना चाहिए ना, सो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये सबको अप्लाई नहीं करेगा, मतलब पर्सनल सब पे डिपेंड करता है कैसे वो सोचते हैं इन्वेस्टमेंट। सो मतलब मैं कैसे सोचता हूँ ना कि यू शुड हैव अ सेफ्टी नेट पहले वो। सो लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, पहले वो सेफ्टी नेट बन गया, वो अराउंड आपका आपकी एज में, मेरे एज में तो एटलीस्ट आता है अराउंड 1000 या 1500 पर मंथ, एंड आई एम 21। सो आपसे काफी उम्र भी बड़ा होगी नहीं, तो आपको वही एज आएगा, मतलब नंबर उतना होगा 1500 का। सो मंथली वो डिडक्ट हो जाएगा। और ये सेट एक बार नेट एस्टैब्लिश हो गया ना, सो फिर यू कैन इन्वेस्ट इन, फर्स्टली इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, गो फॉर गुड कोर्सेज, गो फॉर गुड व्हिच अपस्किल योरसेल्फ बेसिकली। सो पहले इन्वेस्टमेंट आप खुद पे करो, अपने इनिशियल में तो पहले आप खुद पे इन्वेस्टमेंट करो, इनिशियली वो बहुत काम आएगा आपको, बस मैक्सिमम रिटर्न्स तो आप खुद को दोगे ना, कोई कंपनी क्या देगी आपको रिटर्न उतना। सो पहले आप खुद पे कर लो, फिर वो हो गया, फिर यू कैन गो फॉर इक्विटी, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज इनिशियली रिस्क ले सकते हो। आपको आपको मतलब जॉब तो मिलनी है, ऐसा नहीं कि आपको कोई जॉब, इसमें जॉब नहीं मिलेगी ऐसे। सो आपको रिस्क उतना ले सकते हो, आप जॉबलेस नहीं रहोगे, इतना आपको गारंटीड पता है। सो आप इक्विटी में रिस्क ले सकते हो। पर अगर आपको फिर भी थोड़ा थोड़ा पैसे है जो रखना है एज ए सेफ्टी, सो आप डेट में आ सकते हो, डेट म्यूचुअल फंड्स। ये जो काफी फैंसी स्कीम्स है ना, एनपीएस, पीपीएस, ईपीएस, इसमें घुसना ही नहीं चाहिए आपको फिलहाल तो। ये आपको काम आएगा टैक्स सेविंग के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ टैक्स सेविंग में काम आएगा, और आपको कुछ इन्वेस्टमेंट देखना ही नहीं है इसको। इन्वेस्टमेंट देखना है तो आप म्यूचुअल फंड्स में जाओ, या फिर डायरेक्ट स्टॉक्स में जाओ, या डेट इक्विटी, डेट म्यूचुअल फंड में चले जाओ। और लेट्स से आपके पास ऐसा कोई पैसा ज्यादा आप अर्न कर रहे हो, लेट्स से यू अर्न 28, 30, जैसा आप इसमें ज्यादा पैसा अर्न कर रहे हो, इसमें आपको इसमें इन्वेस्ट करने के बाद भी बहुत पैसा बच रहा है। सो आपको और रिस्क लेना है अभी। सो और रिस्क लेना है तो आप जो प्राइवेट कंपनीज होते हैं, जो प्राइवेट स्टार्टअप है बेसिकली, जिस सेक्टर में आप हैं, जिसमें भी आप काम कर रहे हो, आपको उसका नॉलेज होगा ना, सो आप अपनी नॉलेज वहाँ पे यूज कर सकते हो, सो वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो आप। लेट्स से एज एन मुझे, एंजल। हाँ ऐसे एंजल नहीं, एंजल बहुत काफी डिफिकल्ट होगा, मतलब क्रोर्स में अगर अर्न कर रहे हो तो ऑफकोर्स एंजल कर सकते हो, बट वरना उसके बिना भी स्टार्टअप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो इन्वेस्ट करवाते हैं प्राइवेट इक्विटी में भी। ओके। अभी
रिसेंटली एक कंपनी है जो प्राइवेट इक्विटी में करवा रही है, नाम मुझे, एक मिनट, मेरे पास उसका मेंबरशिप है, एक बार मैं नाम चेक कर लेता हूँ। हाँ, लीड ऑफ। सो लीड ऑफ में आप जो प्राइवेट कंपनीज है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे रिसेंटली आए थे अभी शेयर्स उसमें सीएसके, जो टीम है आईपीएल की सीएसके, उसके जो प्राइवेट प्राइवेट शेयर्स ट्रेड करते हैं प्राइवेट मार्केट्स में, पब्लिक मार्केट्स में नहीं है, सो उसके भी आप शेयर्स बाय कर सकते हो। वैसे बहुत सी कंपनीज है लीड ऑफ अभी अर्ली एक्सेस जो में है ना? प्राइवेट, सॉरी, लीड ऑफ हाँ कंपनी अर्ली अभी एक्सेस में, अर्ली एक्सेस में है ना, जो सबको हाँ उसके एक्सेस रिसेंट नहीं कंपनी है। है। हाँ, वो रीड ऑन उसका, नहीं वही रीड। ओके, मैं चैट में डाल देता हूँ नाम। वो रीड आप ऑन शार्क टैंक देखते जैसे हो? कुछ। हाँ, क्या सोना, शार्क टैंक देख रहे हो आप? शार्क टैंक इंडिया। खत्म हो गया ना अब तो? हाँ मतलब देखा आपने ये सीजन? मैंने इसके मेरे शार्क टैंक यूएस से कितने बार देखा है। अच्छा सुना मेरे को, मतलब इंडिया का भाई वो बहुत ज्यादा था, वाला कहानी तो ठीक था। लाइक जब लाइफ इंश्योरेंस प्लान करें तो उसमें वो बहुत जाना जरूरी है, लाइक इंडोमेंट प्लान के लिए जाए या फिर टर्म लाइफ के लिए। टर्म लाइफ बहुत टर्म बेटर लाइफ, होता है बट टर्म लाइफ लेकिन बहुत क्लियरली हाँ टर्म लाइफ यूज करना चाहिए। हाँ तो लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता होता ये चीज कि लाइक पीपल थिंक कि नहीं भाई इंडोमेंट लो, टर्म लाइफ बेकार है। तो वो भी क्लैरिटी बहुत दिमाग में रखना जरूरी है, क्योंकि मेरे को मतलब मैंने बस अपने पापा को बताया कि पापा ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये बहुत अच्छा चीज है। डिफरेंस क्या एंड है, लोग सोचते हैं एब्सोल्यूट टर्म्स में, हाँ लाइक एब्सोल्यूट टर्म्स में पापा का समझ नहीं सकते। पहला ही क्वेश्चन उनका ये था कि तुमको मिलेगा कितना पैसा वापस। हम हाँ बोले कुछ नहीं मिलेगा, अगर नहीं मरे तो कुछ नहीं मिलेगा। एंड ये वाला लाइक बकवास चीज है। नहीं डालना है पैसा ये सब चीजें को। मैंने कहा लोगों को यार। पहले थिंकिंग चेंज करनी होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को देखता ही नहीं है, आरओआई रेट क्या है। हम्म कोई आरओआई चेक नहीं कर रहा, सिर्फ देख रहा है एब्सोल्यूट रिटर्न्स कितने हैं। एब्सोल्यूट में तो सिर्फ नंबर चेक कर रहे हो ना, नंबर की हम्म वैल्यू कितनी है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ मैं आपको 1 करोड़ दूंगा, बट मैं दे आज रहा से हूँ 20 आपको साल बाद। टर्की करेंसी में। मैंने करेंसी करेंसी चेंज कर दी, दे रहा हूँ टर्किश करेंसी में, उसका वैल्यू कितना है। ये बात है। गार्गी है ना कॉल पे, उसके लिए मैंने एक्सप्लेन किया, बट वो है कि हाँ है। हाँ मैं हूँ, मेरी बीच में शायद आवाज नहीं जा रही थी। हाँ मैं वो समझी आपका पॉइंट कि अभी खुद में इन्वेस्ट करना बेटर है। और हाँ, और जो काफी फैंसी स्कीम्स है ना, इस पर ध्यान, मतलब देखिए सारे आते दो बास्केट में ही है, इक्विटी और डेट। तो आप हाँ डायरेक्ट जाओ ना उसमें, आपको ये स्कीम्स क्यों चाहिए फैंसी स्कीम्स। डायरेक्ट स्टॉक्स बाय कर लो, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स है बेस्ट, वो बाय कर लो, डेट म्यूचुअल फंड्स है। इतना पीपीएफ ईपीएस इसमें पढ़ना ही क्यों है, अगर टैक्स सेविंग नहीं करनी है तो। टैक्स सेविंग करनी है तो ये दोनों काम आएंगे ही ऑफ कोर्स। और इवन टैक्स मतलब सेविंग कि के लिए जब ना, जॉब वॉब मिल जाए तब ये सब ईपीएफ वाला डायरेक्ट। हाँ जॉब वो मिल जाए, उतने हाई इनकम हो कि टैक्स लग रहा है और टैक्स पेइंग कर रहा है हाँ 30% पे। हम्म मेरा पता है, अभी पीपीएफ वाला फॉर्म मतलब मेरे पास ही है, सबमिट करना बाकी है। अब अब मैं सोच रही हूँ कि नहीं करूँ सबमिट। कोई फायदा नहीं है इसके पीपीएफ करके। इवन टैक्स सेविंग के लिए ना, जब हम लोग के पास कोई क्लाइंट्स आता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी फॉर्म में, तो हम लोग उसको एडवाइस करते हैं इससे बेटर है गो फॉर ईएलएसएस, हाँ इक्विटी मैं लिंक सेविंग स्कीम। पूछने ये वाला भी था कि टैक्स फ्री है। ईएलएसएस क्या होता है? ईएलएसएस क्या होता है? ये ईएलएसएस बेसिकली ब्लॉक्स। म्यूचुअल फंड्स है, पर इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है बिकॉज लॉक इन पीरियड होता है। अच्छा 3 साल का? मुझे भी शायद याद नहीं 3 है कि 8 है, मतलब 3 या 8 है बीच में होता है। बहुत सारे इसमें 60 साल के हैं, बहुत सारे 3 साल के। अच्छा जैसे एफडी में करना है, अगर एफडी में कर सकते हो टैक्स सेविंग। आप बाय द वे एफडी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो भी टैक्स सेविंग होता है, बट उसमें लॉक एफडी इन में होता है 8 इन्वेस्ट साल कर। का। हाँ इन्वेस्ट। इन्वेस्टमेंट मत बोलो उसे। भाई अगर इस 10% इसमें मिल रहा है तो ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट है कितना ना। मिलता है? एफडी में कहाँ 10% मिलता है?
अभी बोला ना सोसाइटी में कोऑपरेटिव बैंक। सोसाइटी अच्छा में हाँ उसको मिलता कोऑप है। हाँ हाँ नॉर्मल हमें हमें कहाँ मिलता है लाइक ईएलएसएस में इंटरेस्ट कितना मिलता है लाइक नॉर्मल एवरेज ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स है, सो जितना फंड्स को मिलता है उतना ही मिलेगा उसको भी ना, इक्विटी फंड्स को। इसमें सिर्फ क्राइटेरिया एक ही होता है ईएलएसएस में ना, कि जैसे सौम्य तूने वो फंड देखा है पारंपरिक मल्टी कैप फंड, काफी हाँ अच्छा हाँ परफॉर्म कर रहा है, फ्लेक्सी कैप, हाँ करेक्ट। हाँ फ्लेक्सी सो हाँ उसका फ्लेक्सी कैप पारंपरिक ऐसा फंड हाउस है जिसके शायद तीन या चार स्कीम मार्केट में, एक पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप, एक लिक्विड, एक ईएलएसएस। हाँ शायद तीन ही है, ये तीन फंड ही है उसके मार्केट में। सो जो उसका फ्लेक्सी कैप है, वो फ्लेक्सी कैप फंड का सेम उसने ईएलएसएस में अकाउंट, ईएलएसएस में फंड खोला हुआ है। उसमें डिफरेंस क्या है, अगर तू नोटिस किया है ना होगा, तो फ्लेक्सी कैप में वो इन्वेस्ट करता है यूएस कंपनीज में भी, चेक किया है ना। सो उसमें मैं उसके वही काफी अभी होल्डिंग्स चेक है ही कर रहा फेसबुक हूँ में। हाँ कर ले। हम्म, अब तो क्योंकि वो मैंने भी पराग बंद पाड़े का हो गया है देखा ना, लाइक मतलब बहुत ही ज्यादा इसका अब लाइक इन्वेस्ट बहुत नहीं अच्छा कर परफॉर्म सकते। कर रहा है पराग उस पारिक टाइम का से परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस काफी लोग अच्छा करते हैं, बट पराग पारिक काफी फोकस्ड है, तो उसके उसमें तीन अब स्कूल है मार्केट में। इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते ना हम, अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते ना किसमें सुनील? उसी पराग परक में, क्योंकि वो जो कर सकता क्या है ना, बोलते क्यों हैं, नहीं कर सकता? नहीं नहीं वो लॉक इन हुआ था ना 75,000 ईएलएसएस crores में, ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नहीं नहीं पराग परक फ्लेक्सी कैप फंड में। हाँ वो उसने करेंटली लॉक इन, करेंटली होल्ड पे रखा हुआ है, बिकॉज रूल्स चेंज हो गए सेबी के। हाँ हाँ, हाँ ओपन हो करेंटली होल्ड जाएगा। पे, वो फिर से ओपन हो जाएगा। ओके। सौम्य देख लिया? हाँ तो उसमें उसका होल्डिंग्स चेक कर, होल्डिंग्स में ना उसका होल्डिंग होगा फेसबुक में, अल्फाबेट में, काफी सारे होल्डिंग्स है। शायद फेसबुक तो शायद टॉप 5 कंपनीज में है उसके होल्डिंग में। यहाँ वो उसके उसमें आई ने मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे देखता हूँ किसमें चेक कर रहा है अभी? अभी मनी कंट्रोल पे देख रहा हूँ लाइक इसमें तो तेरे पास ग्रो है, होल्डिंग अल्फाबेट ग्रो है, 8.4% है, कौन? आईटीसी 8.8% है, हाँ अमेजोन हाँ, हाँ हाँ 6.3 उसके है। हाँ फर्स्ट होल्डिंग, हाँ हाँ उसका तो हाईएस्ट वो होल्डिंग इसमें हाँ अल्फाबेट में है ना। हाँ, हाँ अल्फाबेट एट हाई है पॉइंट 4%। अल्फाबेट भी यूएस कंपनी है, करेक्ट। हाँ इसमें अब तो मेरे उसका को सेम सिर्फ फंड हाउस सेम, पराग पारी फंड हाउस सेम है, उसका चेक कर ईएलएसएस की। अच्छा सो वो क्राइटेरिया ईएलएसएस में क्या है ना, कि ईएलएसएस में यू कांट इन्वेस्ट योर मनी आउटसाइड ऑफ इंडिया, बिकॉज टैक्स बेनिफिट दे रहे हैं ना, हाँ सो मनी शुड वर्क फॉर इंडिया। तो जो हम्म, फ्लेक्सी का फंड है, जो होल्डिंग है उसका काफी डिफरेंट होगा ईएसएस होल्डिंग से। ईएसएस के सारे जो है ना ईएसएस फंड में, वो सारे इंडियन कंपनीज में इसमें जो इन्वेस्टेड है। कोई कोई फॉरेन कंपनी नहीं होता है ना, आईटीसी अलाउड ही बजाज नहीं है, होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। हाँ अलाउड ही नहीं है, क्योंकि टैक्स बेनिफिट दे रहे हैं ना हम। ओके। अगर हम्म गवर्नमेंट टैक्स बेनिफिट दिया है, सो वो ऑफकोर्स चाहती है कि आप इंडिया में इन्वेस्ट करो। लाइक बीइंग तो इतना वो अच्छा क्राइटेरिया परफॉर्म है। करने के बाद 46 पे है इसका एक यूनिट एनएवी अरे कम वो में बोनस मिल जाता है यार सौम्या, बोनस मिलता है, फिर वो उसका स्प्लिट ऑफ हो जाता है। अच्छा हाँ हम्म। सही है ये एब्सोल्यूट नंबर नहीं देखते चाहिए। इसके तो मेजॉरिटी ईएलएसएस तो में मेरे को लग रहा क्राइटेरिया है यूएस कैसा है ना स्टॉक्स ही ईएलएसएस है में, कि आपको पहले इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है सिर्फ, हम्म क्राइटेरिया पहला वो है। दूसरा लॉक इन पीरियड होता है, और शायद तीन अच्छा है, आठ है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, शायद तीन ही है। तीसरा लॉक इन गूगल पीरियड में होगा, 3 सो लेकर आ रहा है, गूगल में 3 आ रहा है। हाँ तो वो 3 साल ही होगा। सो अगर 3 साल हम्म के पहले विड्रॉ किया ईएलएसएस स्कीम से, सो उस पर तो टैक्स भरना 5। पड़ेगा अभी। जिस साल विड्रॉ किया उसमें टैक्स भरो, तो टैक्स डिडक्शन फिर से विड्रॉ कर लेगी गवर्नमेंट भी। पहला हम्म वो होता है। और 80C में जैसे आप क्लेम करते हो ना पीपीएफ का हम्म डिडक्शन, हम्म उसमें क्लेम होता है ईएलएसएस भी। तो अगर आपका रिस्क एप्टाइट हाई है, जैसे पीपीएफ बेसिकली डेट, उसको ऐसे इंक्लूड करो डेट में, डेट बास्केट में इंक्लूड कर लो। और जो हम्म ईएलएसएस है वो इक्विटी बास्केट है। सो अगर हम्म इक्विटी में आपको इन्वेस्ट करना है, एटीसी में क्लेम करना है, तो ईएलएसएस बेस्ट है।
अगर आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न चाहिए, अगर सिर्फ हम्म टैक्स सेव करना है और आपको मतलब अपना कैश सेव चाहिए तो पीपीएफ अच्छा है। बट ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स टैक्स सेविंग के लिए, हम्म वरना इनके जो सिमिलर सिमिलर काउंटर पार्ट्स तो अवेलेबल है ना डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स में। जैसे अगर पीपीएफ का इक्विटी में पराग पाली का फ्लेक्सी कैप फंड है, हम्म सिमिलरली अगर आपको सेफ रहना है तो डेट फंड्स होते हैं, पीपीएफ में क्यों जाना है? अगर आपको टैक्स सेव करना है तो इस सब में जाओगे ना आप। हम्म तो डेट फंड में भी टैक्स नहीं लगता? डेफिनेटली टैक्स लगता है ना, ऑफ कोर्स लगता है। वही इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट लगता है चार्ज आईएफओएस में। वही सॉरी, वो तो हेड है। एनी इनकम, गवर्नमेंट रूल में एनी इनकम यू अर्न इज चार्जेबल अंडर टैक्स। एग्जेम्पशन सिर्फ एक को है, एग्रीकल्चरल इनकम। बाकी सारे टैक्सेबल है, सारे इनकम ऐसे भी अर्न करो। तो तो जब डेट फंड में लाइक आप मेरे को सेम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, नहीं 9 to 11% का मिल रहा है, तो मैं क्यों ना पीपीएफ ईपीएफ में करूँ? वहां पे तो हाँ, तो मैंने टैक्स भी नहीं एक्सप्लेन जा किया रहा, ना, सिर्फ क्योंकि अगर टैक्स टैक्स, टैक्स सेव करेंगे ना। हाँ क्योंकि अगर डेट फंड में करते हैं तो फिर टैक्स कटने के बाद तो हमारा लाइक रिटर्न तो सेम ही आ जाएगा। नहीं, सो मैं समझा नहीं थी। अभी समझ, तूने एक साल में ना 11 लाख अर्न किए, ठीक है? ठीक है। तो हाँ तेरा टैक्सेबल इनकम कितना है? 11 लाख, करेक्ट? हाँ। बट अगर तूने गेट अपने वो पीपीएफ में इन्वेस्ट कर दिया एक हम्म लाख हम्म इस वक्त तेरा टैक्सेबल इनकम 10 लाख ही है, हाँ समझा? बट अगर तूने 1 लाख इन्वेस्ट किया डेट फंड में, डेट म्यूचुअल फंड, हम्म तेरा टैक्सेबल इनकम 11 लाख ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ, तुझे हम्म कोई बेनिफिट नहीं मिला। हम्म ये टैक्स टैक्स सेविंग के लिए काम होता है पीपीएफ का, समझा? हाँ वो तो मैं समझ गया, मैं वो नहीं कह रहा था। मैं कह रहा हम्म था कि लाइक जब ये हमारा हम जब अपने पैसे को वापस निकालेंगे, लाइक म्यूचुअल फंड को सेल करके पैसे वापस निकालेंगे, तो डेट फंड में तो गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी ना जो हमारा कैपिटल गेन पे। डेट फंड में कैपिटल गेन कैसे हो सकता है यार? इंटरेस्ट गेन होगा ना। हाँ वही इंटरेस्ट गेन पे मतलब गवर्नमेंट हाँ हाँ, टैक्स तो लगेगा ना। लेगी ना हमसे। हाँ, लेकिन लगेगी। अगर वही अगर हम लोग पीपीएफ में करें तो उसमें तो टैक्स नहीं कटेगा जाएगा हमारा। टैक्स फ्री है उसमें उसमें हाँ। पीपीएफ तीनों स्टेज में टैक्स फ्री है। 3 स्टेज हम लोग काउंट करते हैं हम्म इन्वेस्टमेंट पे। फर्स्ट होता है इन्वेस्टमेंट स्टेज, सेकंड हम्म उसका बेनिफिट स्टेज, या फिर इसमें इंटरेस्ट या फिर जो इक्विटी गेन होता है हम्म वो, हम्म। उसमें भी टैक्स फ्री है। और थर्ड होता है विड्रॉवल स्टेज, उसमें भी टैक्स फ्री है। तीनों में टैक्स फ्री है पीपीएफ। तो ये तो फिर एक अच्छा ऑप्शन हुआ ना डेट फंड के कंपैरिजन में। डेट फंड में लेकिन यहाँ पे ये भी है ना ड्रॉबैक्स। तो जो लॉक इन पीरियड होगा, तुम हाँ डायरेक्टली 15 विड्रॉ नहीं कर साल का। सकता जब। 15 साल। हाँ, सो वो तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना। हाँ ये चीज है। तो क्या हम डेट फंड्स और पीपीएफ वगैरह का इंटरेस्ट रेट हम लगभग सिमिलर मान रहे हैं इसमें? इंटरेस्ट रेट, हम्म हाँ, डेट फंड्स और पीपीएफ का। इंटरेस्ट रेट ना यूजुअली डेट फंड्स का हायर होता है, बिकॉज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशू होते हैं तो वो लोग हायर इंटरेस्ट पे इशू करते हैं पीपीएफ नाइन से। अच्छा। टू 11% एवरेज में आया था ना। हाँ, पीपीएफ का तो थोड़ा कम होगा, उससे ज्यादा कम नहीं होगा, बट अराउंड 1-2% का डिफरेंस हो जाता है। 1-2% जब वो का। डेट में हाँ। इफेक्ट करता है, बिकॉज वो डेट तो वैसे ही देता है कितना है। हाँ हाँ। तो बेसिकली लिक्विडिटी के मामले में और अपने 1 to 2% है, बट आई थिंक टैक्स में फिर उतना बच भी जाएगा अपना पीपीएफ के मामले में, राइट? हम्म 1-2%। बट कोई इन्वेस्टमेंट गेन इतना हाई तो होगा नहीं। जैसे अगर आपने लेट्स से कि कोई नई कंपनी है, उसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है, हाँ ये स्टार्टअप ही अच्छा करेगा, मुझे फाउंडर से मतलब फाउंडर से इन्फ्लुएंस जो काफी सही है। इसमें हम्म अगर आपने डाल दिया एक और 15 साल बाद वो 1.5 करोड़ 2 करोड़ भी हो सकता है। बट पीपीएफ उतना ही होगा ना यार, मतलब 10% रेट से कंपाउंड हो कितना बढ़ जाएगा वो। हम्म तो पीपीएफ हम लोग हाँ। जब देखते हैं, हम लोग सिर्फ देखते हैं टैक्स सेविंग पर्सपेक्टिव से। लेट्स से कि मेरे को टैक्स तो बचाना ही है, वरना टैक्स भरना पड़ेगा। सो अगर मैं वो पैसा गवर्नमेंट को दे रहा हूँ, उससे बेटर मैं खुद के लिए इन्वेस्ट कर लूंगा पीपीएफ में। मतलब हम्म गवर्नमेंट को देने से बेटर है खुद में इन्वेस्ट कर लूं पीपीएफ में। मेरा एटलीस्ट वो पर्सपेक्टिव है कि टैक्स सेविंग से देखता हूँ मैं, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट तो नहीं लगता मुझे पीपीएफ या डेट कुछ भी। डेट सेफ रहने के लिए अच्छा है कि सेफ्टी नेट हो जाता है कि एटलीस्ट कभी इक्विटी मार्केट डाउन भी है
और कभी कुछ इमरजेंसी या काम हो गया तो डेट फंड्स काम में आ सकते हैं। हम्म, नहीं, सौम्या काफी शांत बैठा है आज। नहीं, नहीं, मैं यही सब सोच रहा था। हो गया आई मेरा थिंक डाउट इसके क्लियर। पहले तक हम लोग पीपीएफ के बारे में काफी पॉजिटिव थे, है ना सौम्या? हाँ, लाइक आज भी मैं मतलब क्लियर ही हूँ, लाइक जैसे देखो, जैसे सिंपल इन्होंने कहा भैया ने कि लाइक अगर तुम इतने पैसे कमा रहे हो जहाँ तुम्हें टैक्स देना पड़ रहा है, तो वहाँ तुम पीपीएफ में इन्वेस्ट करोगे, टैक्स बचा लो। अगर तुम उतने पैसे नहीं कमा पा रहे हो तो भाई क्यों डालना, उसके बारे में क्यों ही सोचना है ना? तो डालो, इक्विटी वगैरह में डालो। वही तू अभी फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है ना, जब तेरे को मैन हू मेड इंडिया में आना है तब के लिए। मैन इंडिया मतलब? मैन हू मेड इंडिया, अरे वही यार जो हाँ, 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 बिजनेस हाँ, मैन जो हाँ, हाँ, इंडिया को सुपर पावर बना दिए तब के लिए सोच हाँ, रहा है। हाँ, ठीक है। अच्छा सौम्या, एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल याद आया मुझे। हम लोग लास्ट में पहले बात कर रहे थे ट्रेड के ऊपर, उसका स्ट्रेटेजी क्या होगा हम्म, हम्म, ऑन करने का प्रॉफिट। हम्म, तो रिसेंटली मैं बस एक कंपनी में गया था ऑडिट करने के लिए। सो वहाँ का जो मैनेजर था, उसके यहाँ मैंने हम्म, एक मैगजीन देखी। सो कभी हम्म, तुम लोगों ने ऐड देखा है रोल्स रॉयस का या फिर लैम्बोर्गिनी का? लैम्बोर्गिनी का गानों में आते रहता है, बट रोल्स रॉयस का या फिर जो हाई एंड लग्जरी कार्स होते हैं उनका कभी टीवी पे ऐड देखा हुआ है? नो, नहीं, शायद नहीं। नहीं। कभी कहीं पर भी ऐड देखा है? कहीं पर भी जैसे नहीं, एक्चुअल होर्डिंग्स हो कहीं पे, कहीं शोरूम में हो? नहीं, नहीं। ओ नहीं। हाँ, बट नहीं। मैंने सही वो में। ऐड देखा मैगजीन में। सो मैंने हम्म, फर्स्ट हम्म, टाइम वो ऐड मैगजीन में देखा। सो मुझे मतलब इतना क्यूरियोसिटी हुई कि मतलब ये ऐड मैगजीन में कैसे आया, रोल्स रॉयस का ऐड। हम्म, हम्म। सो मैंने उसके मैनेजर से पूछा कि ये मैगजीन में जो ऐड है ये कैसे है। मैंने उससे प्राइस पूछा कि मैगजीन कितने की है। तो उसने बोला कि मैगजीन का प्राइस है 25,000 पर ईयर। हम्म, वाह। तो मुझे लगा शायद मंथली पर वीक आता मैगजीन है। होगा या फिर पर वीक होगा या फिर डेली होगा। मेरा क्वेश्चन ये था। तो उसने हम्म। बोला नहीं, सिर्फ इशू इसका होता है पर मंथ। बाप रे। हम्म, पर तो मंथ यानी कि उस लगभग मैगजीन का 2000। यूनिट कॉस्टिंग कितना है वो चेक कर लो आप। अराउंड हम्म, को 2,000 की एक मैगजीन है। हम्म, सो उसने वो ऐसे ऐड प्लेस किया है कि ये हाई एंड मैगजीन है, इसको देख के वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं रोल्स रॉयस या फिर वो हाई एंड लग्जरी कार्स। हम्म, सो वो एड प्लेसमेंट है। सो अगर इसमें क्रेड कैसे अर्न कर सकता है, बिकॉज क्रेड में जो सारे उसके यूजर्स हैं वो ऑलरेडी हाई एंड फाइनेंस यूजर्स हैं, उनका जो क्रेडिट स्कोर है वो हाई है। सो क्रेड कैन डू टारगेटेड मार्केटिंग, मतलब उसको टारगेट ऑडियंस मिल चुकी है, वहां पे वो ऐसे एड्स प्लेस कर सकता है जिसके मार्जिन काफी मतलब काफी हाई होते हैं। बिकॉज वो कंपनीज ऐसे नॉर्मल जो एड कैंपेन्स होते हैं, नॉर्मली हम्म, कंपनीज जो कंज्यूमर कंपनीज है वो एड कैंपेन्स में काफी पैसा डाल देती है। और वो कैसे भी एड्स कर रहे होते हैं, जैसे कि यूट्यूब पे ऐड आ रहे हैं, टीवी पे आ रहे हैं, हम्म, होर्डिंग्स लग रही हैं, कैसे भी एड्स आ रहे हैं, न्यूज़पेपर में एड्स आ रहे हैं। बट जो रोल्स रॉयस कंपनी है उसका तो ऑडियंस ही काफी स्मॉल है। सो यहाँ सब में एड देते उसको कुछ मतलब कुछ बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। सो वो टारगेट एड्स करेगी, जो टारगेटेड एड्स जो होंगे ना क्रेडिट पे आएंगे, वो उसके लिए काफी हाई पे करने के लिए रेडी होगी, बिकॉज उसकी ऑडियंस ही उतनी है ना छोटी सी। तो उसको ऐड ही हम्म, उतना करना है, सो क्रेडिट उसको वैसे भी अर्न कर सकता है। हम्म, वो है, सही है। स्ट्रैटेजीज तो होंगे क्योंकि लाइक मेरे को मतलब मेरे को लगता है बहुत सारे अच्छे अच्छे स्ट्रैटेजीज होंगे बिकॉज